Hello everyone, welcome you all to the another episode of Egghead Conversations. And as we all know, in Egghead Conversations, we bring in people from the society and who has brought lots of changes to the society. They have given their contribution to the innovation part of the social changes and also into the technology and all other parts. So today we are privileged to welcome Dr. Sunita Gandhi, and she will be here and taking us through all her journey and how she has been, transforming her career from, being a economist to a social, impact maker. So today we would like to welcome Dr. Sunita Gandhi to the podcast of Agate Foundation. Hello, ma'am. How are you? How are you doing? Good, Nandan. Really awesome to meet you and to be on this wonderful podcast of yours, the Yes, Egghead Foundation. yes, ma'am. Thank you. Thank you very much for taking out time and being here with us. So, wanted to introduce her to the complete society, and they should know that how she has, come up to this particular point and how she is, being a part of social changes and, how she has been, involved to the, uh, you know, social, impact to the uh, girl child development to educational improvement in many sectors, right? So I would like to introduce her, and I would like to let you guys know that from where she has started. So she has started as a economist in World Bank. Okay, so hope you guys are been, like a question mark already there, that okay, she was there in World Bank and now she is in this sector. Is it? Okay. Then I would also like to let you guys know that like she has done her PhD from University of Cambridge, right? Then she has been, the as chief advisor of one of the school which is already recognized by UNESCO as peace and education for UNESCO Prize of Peace and Education, and also the largest school in the world. So needless to mention the name, which is CMS. We all know CMS, and yes, need least of all, I would like to bring upon something that she is doing at this moment. So, which is Devi Sansthan. So, we would like to know more about Devi Sansthan and how that thing happened to you, ma'am. And also, we would like to know and we would like to take you back to your days. And we want to enjoy every moment, and we want to experience, we want to learn every single thing that you have consumed from all your experience that you had. Yes, ma'am, over to you. ओह नंदन जी धन्यवाद। नहीं, मेरी जर्नी तो ये है कि लखनऊ में हम ग्रो अप करे। यहाँ पे हमारा मम्मी पापा का उद्देश्य था कि एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करें Mhm, जिसमें कि बच्चे महान बने और हर बच्चा एकेडमिकली तो स्ट्रांग बने, पर mhm. साथ में उसके अंदर विचार भी हों कि Right, वो पूरे विश्व की सेवा करे right, और वसुधैव कुटुंबकम को right. अपनाए और उसके साथ प्रेरित होके उसके कलम की ताकत बढ़ाए, जिससे कि उसके कलम से सिग्नेचर हो तो बहुत लोगों का फायदा हो। तो Exactly. उसमें पैसे वैसे नहीं होते थे, बहुत ही गरीबी में हम लोग रहते थे, Right. लेकिन विचारों की वजह से कुछ चीज़ें हो पाई। पापा मम्मी ने उस समय संकल्प किया कि हमें वो विदेश में पढ़ाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी इतनी अच्छी हम लोगों की नहीं होती थी। और Mhm. उनका यही था कि अंग्रेजी आएगी तो फिर हम लोग विश्व लेवल पे काम कर पाएंगे। Right. तो जो भी था सही गलत, हम बहुत छोटे थे, उसमें 16 साल की उम्र के थे। तो उन्होंने परिवारजनों से किसी से 1,000 2,000 रुपए ऐसे करके, और कुछ एक स्कूल कानपुर के भी थे, अच्छा। तो उनसे कहा कि आप हमारे हमारे होनहार बच्चे हैं और इनको आप जो है हमें मौका दीजिए कि इनको हम विदेश में भेज पाएं। फिर ये Right. लोग वहां पे अपने आप ही कुछ इंतजाम करेंगे। Right. तो इंतजाम क्या करेंगे हमें पता नहीं था, क्या हम लोग कर रहे हैं, छोटे थे। तो लेकिन निकल गए, और पापा के विश्वास पे निकल गए, मम्मी के विश्वास पे निकल गए।
और वहां जब पहुंचे तो फिर सीन कुछ और ही था, क्योंकि हम लोग केवल लेके गए थे 235 पाउंड। मेरा भाई भी गया था, वो मेरे से छोटा था। हाँ। मैं 16 से जस्ट टर्न करके 17 में आई थी। राइट। तो 16-17 साल, इफ यू विश, दोनों बच्चे। हम्म। तो जब हम पहुंचे वहां पे तो पापा ने गाइड किया था कि आप जाइए वहां पे, जो इंडियन हाई कमीशन है वहां पर एजुकेशन अटैचे से मिलिए, और उनसे कहिए कि आप हमें एडमिशन करा दीजिए ए लेवल्स, माने 11th एंड 12th में। वो राइट। दोनों हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते आए थे, तो वही उद्देश्य भी था। तो फिर वो हम लोगों ने जब उनसे मिलने गए तो हाँ, एक मिस्टर मुखर्जी थे, बड़े अच्छे से थे। राइट। तो वो बिल्कुल मतलब समझ नहीं पाए कि हम अकेले कैसे आए, मम्मी पापा क्यों नहीं और आए, इस उम्र में, ऐसे ही। हाँ। और 17 की उम्र में, हाँ, इस उम्र में, 16-17 साल की ये उम्र में। ये सबसे बड़ी सो बात है। जी जी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग एडमिशन कराने आए हैं तो कैसे करेंगे, चलिए हम आपको मदद करते हैं। उन्होंने मतलब दे ही रियली अप्रिशिएटेड हम्म। कि इतना हम लोगों ने इतना बड़ा स्टेप लिया, और भारत से आए हैं तो हम्म। कुछ मदद करते हैं इनकी। कुछ मदद तो करते उन्होंने देखा कि हम बच्चे भूखे होंगे या कुछ होगा, तो उन्होंने कहा चलो आपको खाना खिलाते हैं। एम्बेसी में ही, वहीं हाई कमीशन में ही उन्होंने फिर हमें खाना खिलाया। हैं। तो राइट। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद हम लोगों ने कायदे का भारतीय खाना खाया। ओहो। तो लेकिन उनके मदद से फिर हमने लिस्ट ली, और हम्म। उन्होंने खुद भी कुछ कॉल्स किए अच्छा। कि इन बच्चों को ले लें। तो हाँ। ये जुलाई था 1978। तो 1970। बहुत ही, हाँ बहुत ही कई साल पहले की बात है ये। हम्म। अ, तो हम लोगों ने उस लिस्ट पे फिर 300 प्लस लेटर्स, मेरे भाई ने और मैंने 300 प्लस लेटर, मैंने 600 लेटर्स लिखे, सारे स्कूलों को लिख दिया, पूरे लंदन और ग्रेटर लंदन के, कि उनमें से कोई भी हमें ले ले, क्योंकि बहुत ही लेट टाइम था। नॉर्मली एडमिशन्स जनवरी में सेटल हो जाते हैं, क्लोज अगस्त हो में क्लास जाते हैं। शुरू होते हैं। राइट, 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 तो राइट, खैर फिर हम लोग को मिल ही गया एडमिशन। राइट, राइट, और फिर ये था कि भाई हम कैसे फीस पे करेंगे, उसमें फीस बहुत कम होती थी। राइट, राइट, तो राइट। यूनिवर्सिटी की भी फीस, जब हमने बाद में जाके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी तो 400 पाउंड होती थी उस समय, विच इज वेरी लिटिल, 40,000 रुपीज इन टूडेज टर्म्स। राइट, 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 राइट। वेरी वेरी लिटिल। सो फिर लेकिन फिर वो भी खाना पीना रहना कैसे करें, 235 पाउंड तो बहुत ही नहीं लास्ट करते। तो राइट। फिर हम लोगों ने वहाँ पे और जॉब्स लिए। तो ओके, आपने वहां पे खुद काम भी किया, और ओके, नाइस, 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 मैम। या तो या और मम्मी पापा को नहीं बताया ये सब, क्योंकि वो ऑडियंस, आप ट्रंक कॉल देखिए। आता था उसमें। हाँ, देखिए, 1978 की बात है, और उस टाइम पे भी मैम आज के नौजवान जैसे विदेश में जाके कुछ करते हैं, तो लाइक साइड इनकम के लिए साइड हसल्स करते हैं, मतलब लाइक साइड में कुछ करते, तो मैम ने ये चीज कितने पहले ही शुरू कर दिया था। और ये चीज अगर उस टाइम से हमारे नौजवानों को पता होता, तो सारे लोग उसी एक धारा को फॉलो करते। वो कितनी मतलब बड़ी बात है। तो ये एक पॉइंट है, जो भी आज हमें सुन रहे हैं, और वी आर रियली प्रिविलेज टू नो ऑल दिस फैक्ट्स, ऑल दिस लाइक स्ट्रगल्स दैट शी हैज गॉन थ्रू। उनका जो ये संघर्ष है, और जारी है संघर्ष, और इसमें हमें जुड़ना है, और इसमें हमें ऐसे जुड़ना है कि हम भी एक इम्पैक्ट लाए। मैम ने एकदम इनिशियली ही बताया था कि उनके लाइक मम्मी पापा ने ये बोला था कि अगर आपके कलम से कोई स्याही निकल रही है, तो उसका वैल्यू, और उससे लिखा गया सारी चीजें समाज को वैल्यू करे, इस लेवल तक उनको पहुंचना है। उसके लिए विदेश जाना है, नहीं जाना है, विदेश जाके क्या करना है, ये सारी चीजें मैम आज हमारे सामने रख रहे हैं। और हमें एक एक चीज को संभाल के रखना है, सो दैट वी कैन ऑल्सो फॉलो हर इन दिस पाथ। यस मैम, ओवर टू यू। तो जब हम वहां पहुंचे, मेरा विषय फिजिक्स और मैथमेटिक्स था। हम्म। बचपन से इंटरेस्ट था मेरा उन सब्जेक्ट्स में। राइट। तो मेहनत करते थे ऑफ कोर्स, लेकिन जब एकदम हम पहले क्लास में गए, वो पीटरबरा टेक्निकल कॉलेज में हम्म। हमें एडमिशन मिला, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज था। हम्म। और इत्तेफाक से वो बहुत ही खराब कॉलेज था। हम्म। जो भी था। तो वहां पर कुछ खास पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी। हम्म। तो हम लोगों ने फिर संकल्प किया कि हम लोग खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, करेंगे। क्योंकि मम्मी के विश्वास को हमें रखना था। और ऐसा हम लोग इंडिया में भी इतने अच्छे खास टॉपर्स नहीं थे, हम लोग मीडियोकर थे। मैम, तो आजकल लेकिन उन्हीं लोगों का दिन है, उन्हीं लोगों का दिन है। लेकिन हम लोग के मन में जज्बा था कि भाई पापा मम्मी का
मान रखना है और खुद की नैया को चलाना है। पापा मम्मी को बता भी नहीं पाए हम लोग, ना बताना चाहते थे कि हम लोग मुश्किलों में हैं। जब भी वो फोन करते थे, ट्रंक कॉल आता था, तो हम कहते थे नहीं नहीं सब ठीक है मम्मी पापा, तो खुद हम लोगों ने फिर मेरे भाई ने फॉर एग्जांपल हाइड पार्क में आइसक्रीम बेची। तो उससे कमाई हुई, फिर वो उसने बर्तन धोए एक किचन में। हमने भी इस तरह के कुछ और जॉब्स लिए, क्लीनिंग के जॉब्स लिए, हर तरह के जॉब्स लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को मतलब ऊपर उठने के लिए यही तरीका था। तो ये नहीं था मन में कि ये नीचा काम है। पापा ने हमेशा कहा था कि कोई काम नीचा नहीं होता है, यू नो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब रोजी रोटी चलानी तो करना ही है। करना ही है। तो फिर हम लोगों ने जो संकल्प किया उसकी वजह से हम लोग किसी तरह अपनी एजुकेशन कर पाए। तो इफ यू इमेजिन, हम्म। उस समय वी वर द रॉक बॉटम इन टर्म्स ऑफ यूके। जो लोग यूके में रहते हैं, तो हम बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे थे। लोएस्ट यू लेवल नो पे। चाय भी नहीं पीते थे बाहर की, 10 पेंस लगेंगे, बस नहीं लेते थे, साइकिल हम्म। चल के जाते थे। तो इस तरह से किसी तरह, वो भी टूटी फूटी साइकिल किसी से सेकंड हैंड ली। तो हम लोगों ने काम चलाया अपना, और उससे ना संकल्प बढ़ा। और हम्म। उस समय तो हमें मुश्किलें मुश्किलें नहीं लगती थी, हमें लगता था अरे करना है, चलो करते हैं। तो फिर इससे शिक्षा का जो प्रभाव है वो मैं बताना चाहूंगी राइट। कि उसकी वजह से हमें एडमिशन मिल गया, मेरे भाई को मेरे को दोनों को, हम्म। अच्छी यूनिवर्सिटीज में लंदन में। हम्म। और वहाँ पर हमें स्कॉलरशिप भी मिल गई, और साथ में हम काम करते रहे। हमने एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करी कुछ समय बाद। ओ। वो पापा का ही आइडिया था कि ट्रैवल एजेंसी शुरू करो, उसमें बहुत ज्यादा इनकम हो सकती है। बस एक आइडिया उन्होंने दिया, हमने शुरू कर दी। पापा मम्मी का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, वो स्कूल वाले थे, हम्म। लेकिन फिर हमने ये किया। हम्म। और इससे हमारी इनकम बनी। फिर हमने घर पे एक डिपॉजिट दिया, वो ओहो। पापा को पता भी नहीं था कि हमने क्या। मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि देखो रेंट दे रहे हो, 70 पाउंड पर वीक आ रहा है, हम्म। अगर आप मॉर्गेज ले लोगे तो 55 पाउंड पर वीक हो जाएगा, ओके। मतलब उस पर्टिकुलर घर के बारे में। कंसेशंस मिलेंगे तो यहाँ। हाँ, लेकिन फिर लोन कहाँ से लेंगे, हम लोग के पास उतने पैसे थे ही नहीं। हम्म। तो वो जो डाउन पेमेंट था और जो खर्चे सारे थे, सब मिला के 2,000 पाउंड आ रहे थे। हम्म। 28,000 पाउंड का घर था। हाँ तो हाँ। फिर मैं नेटवेस्ट बैंक में गई, नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक, सिटी ऑफ लंदन में। हम्म। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे लोन दे दीजिए। तो मेरे को अगेन वही रिएक्शन जो उनका था, मुखर्जी जी का, हाँ हाँ कि हाँ। आप कि पापा आप मम्मी नहीं है, कहाँ से इनकम है, कैसे दे देंगे लोन। लेकिन उसमें बैंक्स के पास बहुत पैसे होते थे, हाँ। नंबर वन। नंबर टू, 5% पे डाउन पेमेंट पे वो लोन दे देते थे। अच्छा। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बहुत अचंभे वाली चीज करी। वो हमको 3 महीने तक बुलाते रहे कि अच्छा। आप इस समय आ जाओ, उस समय आ जाओ। अच्छा, जो जो हमारी छोटी इनकम होती थी, हम अपनी डायरी में लिख लेते थे। एक ओके। पूरा हमने नोटबुक बनाई थी, इसमें हम लिख लेते थे विनय की मेरी इनकम क्या क्या है। हम्म। और उसके बाद फिर ये 3 महीने हम तक लोग जब, मतलब आपने जो भी इनकम किया वो उसका एक मतलब खाते में सब कुछ रिकॉर्ड करके लेके जाके उनको सबमिट किया होगा, ऐसा कुछ। हाँ, तो वो हमें हर तरह के प्रश्न पूछते थे, टू रीड आवर माइंड्स, टू अंडरस्टैंड अस, और टू करेक्ट। अंडरस्टैंड मी इन फैक्ट, बिकॉज आई वाज द फ्रंट पर्सन, आई वुड गो एवरी टाइम। हम्म। तो पर 3 महीने बाद उन्होंने कहा हम देंगे आपको लोन, हम्म। राइट। तो जब हमें लोन मिला, तो उन्होंने बाद में बताया कि मैं हिचकिचा रहा था लोन देने में, क्योंकि इनकम का आपको कोई एक्चुअल स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं है, ये बस ट्यूशंस हैं और छोटे मोटे जो आप काम कर रहे हैं वो है। तो लेकिन मैंने आपका देखा, जितनी बार भी मैंने आपको बुलाया, आप टाइम से पहुंचे, और आप टाइम से पहले पहुंचे। राइट। तो मुझे लगता है कि आप मेरा लोन भी टाइम से पहले पे करेंगे, या टाइम पे पे करेंगे। हम्म। तो मतलब कहीं ना कहीं जो विचार पापा मम्मी ने हमारे डाले थे, तो उनकी वजह से हमें आगे वो बढ़ने का हर मौका मिला। तो जगह वो हर जगह मतलब निकल के आई, हर जगह वो चीज निकल के आई। राइट मैम। क्योंकि लोग सिंसेरिटी देखते हैं, लोग आपके एग्जैक्टली। अंदरूनी बातों को खोजना चाहते हैं, ट्रस्ट नहीं होता इनिशियली। राइट। तो इन चीजों से ट्रस्ट बढ़ा। मुझे पता भी नहीं था ये सब हो रहा है, मैं तो बस एज अ नॉर्मल कोर्स कर रही थी ये सब। हाँ। उसके बाद जब लोन मिल गया, तो फिर मेरा 70 पाउंड पर वीक जो रेंट दे रहे थे, वो 55 पाउंड पर वीक मॉर्गेज हो गया। राइट। और क्योंकि घर बड़ा था, पुराना था, बहुत ही खराब हालत में था, उसको हमने धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ, जैसे सेकंड हैंड कारपेट ले आए, या सेकंड हैंड पेंटिंग करा दी, किचन को धीरे धीरे करके पोर्टेबल मार्केट से चीजें लाके उसको रेनोवेट किया। विनय हमने, और हमारे फिर हमने एक रूम भी रेंट कर दिया उसमें। तो ओह। उसमें 25 पाउंड रूम के मिल गए मैम ये पर तो वीक। ये तो आज के दिन के एयरबीएनबी है मैम। देखिए आप उसी टाइम पे कितने सारे बिजनेसेस जो आज के दिन में एक लाइक एपिटॉम में खड़े हैं, उनको आपने उसी टाइम में शुरू किया, बिना जी। उस चीज को हम जाने हुए। देखिए आप उसी टाइम पे आपने मतलब
क्या बताएं मैम, वो एयरबीएनबी आज का नहीं है, मैम का है। मैम आप क्लेम कर सकते हो। नहीं नहीं, आई मीन आई थिंक संस्कार जो पेरेंट्स डालते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज हम फील करते हैं कि हमारे जो वैल्यूज हैं वो राइट। हमें आगे बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। जहाँ हम वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, शॉर्ट टर्म गेन पे रहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते या सोचते हैं कि ये काम मेरे लिए नीचा है, तो पापा मम्मी ने हम लोग को बहुत अच्छी इस तरह की शिक्षा दी। तो जो संस्कार हमें मिले भारत में, हम्म। उससे हम आगे बढ़ पाए। और साथ में ये था कि लोग देखते थे मेहनत कर रहे हैं तो वो हमें भी सहयोग करना चाहते थे। तो करेक्ट। लोग मिले हमें जिन्होंने बहुत सहयोग किया। जैसे कि हमारे पास 2,000 पाउंड नहीं थे डाउन पेमेंट के लिए, हम्म। तो मैं इसी दोस्त के पास गई जिसने रेकमेंड किया था कि आप खरीद लो। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप मुझे लोन दे दोगे? तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने 6 महीने में उस लोन को अदा कर दिया, दो देखिए। हजार पाउंड लेके उससे तो देखिए। घर खरीद लिया। अब 55 पाउंड और 25 पाउंड हमारा रेंट आ गया, तो हम 30 पाउंड में रहने लगे। तो मतलब इस तरह से किफायत कर करके, और फिर हमने ट्यूशन बढ़ा दिए। हमने ट्रैवल एजेंसी जो एस्टैब्लिश करी थी वो अपने कॉलेज के नाम पे ही कर दी थी, इंपीरियल एजेंसीज करके, हम्म। क्योंकि मेरे कॉलेज का नाम था इंपीरियल कॉलेज लंदन हम्म। यूनिवर्सिटी। हम्म। तो उससे फिर हमने टिकट्स के बहुत और भी बेचने शुरू कर दिए, शाम को भी करते थे, ट्यूशन पढ़ा दिया, मतलब इस तरह से किसी तरह मैनेज किया। फिर हमारा अंडर ग्रेजुएट जब खत्म हुआ, उसके बाद मैंने अप्लाई किया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राइट। पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई इज द ब्रेक, इस कैम्ब्रिज यू नो। जर्नी आप यहाँ से शुरू करते जी, तो पढ़ाई इज द बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड यू हैव, हैं। बिगेस्ट टिकट टू सक्सेस। हम वहां पे रुक करके वापस भी आ सकते थे कि पापा नहीं हो पा रहा, मम्मी नहीं हो पा रहा, हम्म। आप लोगों के पास पैसे ही नहीं है और हम कैसे कर लेंगे, हम तो बच्चे हैं, ये वो कर सकते थे हम लोग। हम्म। लेकिन वो मतलब जो अगेन विचारों जो पापा ने डाले थे कि गिव अप नहीं करना है, करते रहना है, उनको पता भी नहीं था ये सब क्या, उनको ये भी नहीं पता था हमने घर ले लिया। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो अच्छा, वो खुद आ नहीं पाते थे क्योंकि अगेन कौन टिकट खरीदेगा, कहाँ से पैसे आएंगे। कहाँ से तो पैसे? हमको जब उन्होंने यहाँ फ्लाइट में बिठाया, 16 साल, जस्ट आई वाज इन मे आई टर्न 17, सो आई हम्म। वाज 1 मंथ इनटू माय 17th ईयर, हम्म। आई टर्न 16 रादर। तो हम्म। बहुत ही छोटे थे हम उस समय, और मेरा हम्म। भाई उससे 1 साल छोटा। तो जब उन्होंने यहाँ फ्लाइट में हमें बिठाया, उसके 2.5 साल बाद वो हमसे मिल पाए लंदन आके। देखिए। ये कोई क्वेश्चन था ही नहीं कि हम इंडिया इंडिया आ पाए वापस, तो उन्होंने फिर भी खर्चे खास, कहाँ से आएंगे? मतलब उन्होंने भी ऐसा सेक्रीफाइस किया कि उनके दोनों बच्चे, मतलब एक एक होते तब भी अलग बात थी, दोनों बच्चों को मतलब 2 ढाई साल के लिए उन अपने से दूर करके रखा। और वो भी आज उसका जो निकल के आ रहा है, आज आप जहाँ पे खड़े हो, आज आप जो भी इम्पैक्ट ला रहे हो सोसाइटी के लिए, दैट इज द रिजल्ट दैट दे हैव लुक्ड अपॉन। उस टाइम पे ही उन्होंने देख लिया था कि ये होगा, तो अगर हम आज ये सेक्रीफाइस करेंगे, तो उनका वो जो 2.5 साल का सेक्रीफाइस है आज हमारे सामने खड़ा है। तो जब वो आए तब मैंने बताया, पापा देखिए मैंने ये लिया है और इसमें ये सब किया है। अच्छा, उसमें पापा भी बहुत विचारों की दुनिया में रहते थे, उन्होंने कभी कोई भी एक सीएमएस की बिल्डिंग नहीं खरीदी थी तब तक। हम्म। हम्म। तो वो ये सोचते थे कि भाई हम तो गरीब लोग हैं, हम काहे खरीदेंगे, कहाँ खरीद पाएंगे। जब उन्होंने मेरा हिसाब देखा तो पापा ने कहा ठीक है, और उन्होंने ये बताया नहीं, लेकिन लखनऊ आके वापस उन्होंने सबसे पहले अपनी बिल्डिंग ली, स्टेशन रोड कैंपस। ओके। और क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें तो खर्चा कम आ रहा है, जो भी इनके दिमाग में था वो समाज सेवा में थे ज्यादा, वो ये सब बिजनेस साइड में नहीं थे। तो हम्म। जब मैंने ये किया तो फिर उनको ये आया कि आइडिया कि चलो हम भी खरीदते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने बिल्डिंग्स खरीदने शुरू किए, क्योंकि उससे फिर रेंट नहीं देना पड़ा और बिल्डिंग को अच्छा बना सकते थे वो, वगैरह वगैरह। तो सीएमएस की ग्रोथ होनी और भी ज्यादा हुई। हुई। वैसे तो पापा मम्मी की वजह से भी हम तो कुछ उसमें योगदान नहीं दे पाए उस समय, हम तो बच्चे थे और पढ़ रहे थे। लेकिन ये जरूर था कि उसे पापा के मन में आया कि चलो खरीद सकते हैं, कोई बुरी चीज नहीं है। क्योंकि पापा विचारों में थे कि हम खरीदेंगे तो हम पापा ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, आज की डेट तक कोई भी घर नहीं है हम लोग के पास। तो वो अगेन दिस वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। फिर उसके बाद मुझे कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया फुल स्कॉलरशिप से। और फुल स्कॉलरशिप माने आई वाज नॉट टू वर्क एट ऑल। अब काम की जरूरत नहीं थी, पढ़ाई में फिजिक्स में मेरे को मिला पीएचडी में, राइट। कैवेंडिश लैबोरेटरीज। तो बस ये था कि आपको दिन रात पढ़ना है और भी अच्छे तरह से आपको आगे बढ़ना है। राइट। तो वहां पर मैंने बहुत सोसाइटीज में पार्टिसिपेट किया, बड़े बड़े इवेंट्स किए वहां पर भी। मैं सोशल सर्विस में मेरा इंटरेस्ट बचपन से रहा था। तो राइट। वहां पर भी मैंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया, जैसे मेरे थर्ड ईयर में, जिसमें कि पूरे कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को बुलाया यूनिवर्सिटी के, और उसमें हमने रेज किए फंड्स फॉर यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रंस फंड।
राइट मैम, राइट। और एक साल हमने सेव किए फॉर माय ओन इनिशिएटिव इन लखनऊ वेयर आई हैड स्कूल्स इन द विलेजेस व्हिच आई फंडेड फ्रॉम माय इनकम इन कैम्ब्रिज। राइट। मेरे को तो इनकम मैम, अच्छी हो गई थी इन सेंस कि 3 स्कॉलरशिप्स थे मेरे पास, तो इतने राइट। पैसे की जरूरत भी नहीं थी मुझे। कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ ट्रस्ट स्कॉलरशिप मिल गया, मुझे ओवरसीज स्टूडेंट अवार्ड मिल गया, और मुझे ट्रिनिटी कॉलेज स्कॉलरशिप मिल गई। तो इन 3 स्कॉलरशिप पे मेरे पास पैसे, आई वाज अ रिचर स्टूडेंट, नॉट फ्रॉम फैमिली बट बिकॉज ऑफ माय scholarships. So then I एग्जैक्टली, used to send that money to India for my village programs. एग्जैक्टली मैम। देखिए, आपको मैं यहाँ पे एक पॉज लेना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने उस टाइम पे वहाँ पे जाने के बाद, जब आप यूके में थे और आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, आपका बिजनेस भी चल पड़ा था, आपके रूम रेंटिंग भी चल पड़ी थी, आपकी ट्यूशन क्लासेस चल पड़ी थी। उसके बाद भी आपने आपका कोड नहीं, मतलब भूले आप तो फिर भी आप बैक होम इंडिया में अपना जो मेन उद्देश्य था, जो जिसको लेके हम लोग चले थे, निकल पड़े थे, उस पे आपने फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। वहां पे आपका जो ध्यान था वो हमेशा कायम था। इसका मतलब यही है कि आपको कितनी भी सक्सेस मिलती गई, आपने अपना एफर्ट डाला और सारे सक्सेसेस आपके पास आती गई, लेकिन उनकी रौनक शौनक से आप अपने पुराने चीजों को नहीं भूले, आप उस पे बार बार लौट के आए। और यही सबसे बड़ी सीख है हमारे लिए कि हमें ये जानना है कि हमें एक्चुअल में क्या हमारी मोटिव है, क्या हम सोसाइटी को देना चाहते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है। तो मैम, रियली कमेंडेबल। एंड यहाँ पे मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी वर्ल्ड बैंक की जर्नी आफ्टर कैम्ब्रिज शुरू हुई, तो और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पे वो एक अलग लाइक आपका आपके कैरियर में एक अलग ही चेंज लाने वाला होगा। और आपको भी पता होगा कि अब मैं अगर यहाँ पे चली जाऊंगी, मतलब जैसे कि आप वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ेंगे, तो आपके साथ समय और आपके जो आसपास के और बाकी सारी चीज़ों पे जो आपने इन्वॉल्वमेंट लाई थी, वो सारी चीजें भी थोड़ा बहुत लाइक आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आपने इस चीज को कैसे लिया और कैसे वहां से भी मतलब आप आगे बढ़े? I think now I'm working in literacy, I can say that शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, हम्म। क्योंकि जब आप जैसे केम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हम्म। राइट, तो बहुत सारे विचार मिलते हैं, बहुत सारे, माइंड ग्रो करता है। और मेरा मन हमेशा था सर्विस में। हम्म। तो हम्म। एज अ सब्जेक्ट आई वाज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, सो हम्म। आई एंडेड अप डूइंग माय डॉक्टरेट इन फिजिक्स, बट हम्म। दिमाग में ये था कि मैं सेवा में कैसे लगूं, हम्म। यू नो। हम्म। तो फिर मैंने अप्लाई किया वर्ल्ड बैंक में वॉशिंगटन में, हम्म। क्योंकि मुझे लगा कि वो विश्व लेवल पे सेवा करता है, हम्म। गवर्नमेंट्स को पैसे देते हैं, गवर्नमेंट्स उसको सेवा के काम में लगाते हैं, राइट। डेवलपमेंट में लगाते हैं। हम्म। तो मैंने वहां पे अप्लाई किया। थोड़ा सा जर्नी में ये भी था, मैं एज अ साइंटिस्ट मैंने काम किया कैलिफोर्निया में करीब 1.5 साल। तो वहीं से मैंने अमेरिका से ही अप्लाई किया था। और बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि फिजिसिस्ट को इकोनॉमिस्ट बनना बड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट, करेक्ट अ, मैम। मैं ये तो आपका जो ये फिजिक्स वाला सब्जेक्ट है, इस चीज को भी मैंने अभी दर्शकों के सामने लाया ही नहीं था। जो हमें पता चली है कि मैम ने फिजिक्स में पीएचडी किया, देन वो इकोनॉमिक्स में गए और वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़े। ये एक अलग ही डाइवर्जन है। इसके बारे में मैम बताएंगे। मैम आप बताइए हमें, मैं तो बहुत ये उत्सुकता आ गई है मेरी। हाँ, 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 हाँ। सो बेसिकली जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने सोचा ये लोग तो लेंगे नहीं मुझे। हाँ। तो मैं एक लेक्चर देती हूँ, मैंने एक छोटी सी साइट स्टडी करी थी अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन हम्म। एंड अबाउट ब्रिक किल्न्स इन इंडिया। तो मैं 6 महीने भारत वापस आके मैंने टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उनके ही ऑफिस में रह के, हम्म। मैंने 6 महीने रिसर्च करी थी कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बकमिंस्टर फुलर का आइडिया था, उस पर मैंने काम किया था। तो वर्ल्ड बैंक में मैंने प्रपोज किया कि मैं एक लंच टाइम में उनके लंच, ये ब्राउन बैग लंच करके वो होते हैं सेशन, तो मैंने अप्लाई किया कि मुझे आप अलाउ करो कि मैं अपना एक प्रेजेंटेशन कर सकूं अपने डेवलपमेंट काम के लिए। और वहाँ राइट। पे वो जो मैं काम कर रही थी स्कूलों वाला वो भी प्रेजेंट कर पाई। लेकिन वहां पर दो जो लोग आए, शायद 8 या 9 लोग थे टोटल, तो उसमें से 2 लोग जो आए, दोनों ने मुझे ऑफर कर दिया जॉब के लिए, दो जो वरिष्ठ लोग थे उसमें। तो एक ने मुझे 6 महीने का दिया और एनर्जी कंजर्वेशन पे, और एक ने मुझे 1 साल का दिया जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था प्रोग्राम प्रोजेक्ट। हम्म। तो मैंने 1 साल वाला चूज किया, क्योंकि वीजा का इशू हो सकता था।
तो राइट। फिर मुझे बॉस्टन यूनिवर्सिटी भी मैंने अप्लाई किया। मैं सिर्फ दो माइंड में थी क्या करूं। हम्म। तो वहां भी मिल गया, तो फिर मैंने वर्ल्ड बैंक से कहा मुझे आप तुरंत दीजिए क्योंकि मेरा वीजा रन आउट हो रहा है, हम्म। इसे हाँ या ना। हम्म। तो उन्होंने तुरंत मुझे अगले दिन दे दिया। हम्म। तो मैं वहां पे काम करने लगी एज अ कंसल्टेंट फॉर 1 ईयर। ओके। एंड वीजा भी मुझे मिल गया उसका, वर्ल्ड बैंक वाला, हम्म। यूनाइटेड नेशंस का वीजा होता है, एंड यूनाइटेड नेशन का पासपोर्ट भी होता है। तो वो पासपोर्ट। सब हमें बड़ा अच्छा लगा। और फिर मेरे बॉस ने, जो कि बॉब सॉन्डर्स थे, हम्म। तो उन्होंने कहा कि सुनीता यू अप्लाई फॉर द वाईपी प्रोग्राम, यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम है हम्म। वर्ल्ड बैंक का, उसके लिए आप अप्लाई करो ना। वो बहुत ही मुश्किल प्रोग्राम है। हम्म। और वो इकोनॉमिस्ट के लिए है, वो फिजिसिस्ट वगैरह जैसे लोग थोड़ा बहुत आ भी गए लेट्स से कंसल्टेंट बन के, तो वो कैसे हो पाएगा, वो उसमें 25-30। लोग होगी, उनको लगता है कि ये तो वहां सोचेंगे ही नहीं, ये तो कुछ और ही सोचेंगे। हाँ, और इकोनॉमिस्ट का पोजीशन है वो। तो एग्जैक्टली। हाउ डू आई क्वालिफाई? हम्म। सो देन बट ही वाज सो इंसिस्टेंट, सो आई अप्लाइड। आई सेड बाप, मैंने नहीं लग रहा मुझे मिलेगा। हम्म। कहते नहीं, तुम अप्लाई करो। ओके। एंड उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे। सो दैट्स व्हाई से ना, बहुत सारे लोग अलोंग द वे कॉन्फिडेंस देने वाले, उन्हीं की सुननी है हमें, किसी और की नहीं सुननी है। जो नेगेटिव बोलते हैं या फिर थोड़ा सा भी आपको पुट डाउन करते हैं, या एक हमारे बॉस थे वो बहुत पुट डाउन करते थे हमें, हम्म। तो उनकी, उन लोगों की नहीं सुननी है। हम्म। सुनिए उनकी जो आपको कहते हैं नहीं आप कर सकते हो। कर और सकते। ये बहुत जरूरी है बच्चों को, हम क्लासेस में भी कहें आप कर सकते हो। और उसी पे ध्यान देना है। तो राइट। फिर वो मैंने अप्लाई किया। 6 महीने का प्रोसेस है इंटरव्यू का, उसमें 25-30 साल 32 साल तक के लोगों को लेते हैं वो। मैं 26 साल की थी उस समय। हम्म। और एंड में मेरा चयन हो गया, तो मैं यंग प्रोफेशनल बन गई। एंड दैट मीन्स आई बिकेम अ मैनेजर वेरी क्विकली इन द बैंक, एंड दैट वाज अ परमानेंट जॉब इन द वर्ल्ड ओके। बैंक। वो एक मैनेजरियल स्ट्रीम है वर्ल्ड बैंक के अंदर। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला कि मैं लीड करूं मिशंस को। तो मैंने एक मिशन लीड किया फिलीपींस में, एक मिशन लीड किया जमैका में, और उसके बाद बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स किए अफ्रीका में और अन्य देशों में। वर्ल्ड बैंक को रिप्रेजेंट भी किया काफी कॉन्फ्रेंसेस में। तो फिनलैंड में एक कॉन्फ्रेंस थी, एक जॉर्डन में थी। इस तरह कई जगहों पे हमें मौका मिला। एक हमारी कोरिया में थी। मौका मिला कि हम वर्ल्ड बैंक को रिप्रेजेंट करें। साउथ एक ईस्ट, हमारी साउथ कोचिंग में ईस्ट थी। एशिया भी आपने कवर किया। जी, मैंने वर्ल्ड बैंक के थ्रू करीब 30 कंट्रीज करे। 30 कंट्रीज। और पर्सनल जो हमने एजुकेशन स्टडी करने के लिए विजिट्स करे हैं, हम्म। सब मिला के हमारे पास अब इस समय 51 देश हो गए हैं एक। जहां मैंने भ्रमण किया है। ओके। ओके मैम। तो ग्रेट 51 नेशंस। नंबर्स। यस मैम। मैं यहाँ पे एक चीज दर्शकों के लिए लेके आना चाहूंगा कि आप जैसे मैम ने बोल बताया कि उनका वीजा रन आउट हो रहा था, तो उस टाइम पे हम अगर वहां पे होते तो क्या करते। तो मैम ने वहां पे अपना स्टैंड लिया, मैम ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी। तो वहीं से हमें पता लगता है कि मैम ने उनको बताया कि उनको क्या करना है। take decision immediately. If you're otherwise you are going to lose me as a professional, because she is going to go out, she is having all the options in her hand. So ये हमें लाना है, ये हमें करना है कि हमारे पास ऐसा एक ताकत आ जाए कि हम सामने वालों को बता पाए कि क्या वैल्यू रखते हैं हम, और कैसे हम आपकी ज़रूरत बन सकते हैं और आपको कैसे आगे ले जा सकते हैं। और दूसरी चीज जैसे मैम ने बताया, नीडलेस टू मेंशन, कि जहां पॉजिटिव वहीं पे आपका ध्यान। पॉजिटिव मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, निगेटिव, निगेटिव में से पॉजिटिव निकालिए। अगर कोई आपको पुल डाउन कर रहा है तो आप उसको एक चैलेंज लीजिए। तो मैम ने ये सारी चीज़ों को हमारे सामने आज रखा है उनके इस जर्नी में टिल लाइक वर्ल्ड बैंक जो अभी जस्ट शुरू हुई है, और बाकी न जाने कितने में हम अभी एक एक करके जाएंगे। तो मैम रियली ये सारी चीज़ें दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हम ध्यान से लाइक इस चीज़ पे अपने आप पे कितना काम कर सकते हैं हम करें। हम ध्यान दें अपने सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि मैम ने जो सेक्टर्स चूज किया वही सेक्टर चूज करना है। जो आपका है, जो आपका डोमेन है, वहाँ पे आप, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सारा ध्यान हमारा, जो कोर हमारा जो है, कोर जो हमारा डिसीशंस है, कोर जो हमारे उद्देश्य लेके हमने शुरू किया है वहां पे जाए।
हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती खुल सकती है, हमें बहुत कुछ दिख सकता है सामने, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें करना क्या है। सो मैम, आगे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी वहाँ से आगे कैसे बढ़ी, और आप फिर वर्ल्ड बैंक में आपका और क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहा जिससे हमने लाइक वी आर प्राउड टुडे। यस मैम। नहीं, बहुत छोटी मोटी चीजें भी हुई और अच्छी अच्छी चीजें हुई। तो मेरा इंटरेस्ट था कि भाई जो बंदा अपनी लाइफ चला रहा है, हम्म। हमें उसमें अच्छी खासी सैलरी वगैरह मिल रही थी, हम्म। तो हम 10 रुपए से क्या कर सकते हैं हमें नहीं पता, हम्म। हम उसको वेस्ट कर देंगे। राइट। वही 10 रुपए हम एक लेडी को देंगे जो कि गरीब है, हम्म। वो 10 चीजें उससे कर लेगी। राइट मैम। यू नो एक साड़ी से वो कितनी चीजें कर सकती है। राइट। तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे तो गलत होगा। तो हम्म। मैंने वर्ल्ड बैंक में फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि हाउ टू मेक द पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन डिसीजन मेकिंग फॉर अबाउट हाउ टू स्पेंड द फंडिंग दैट द वर्ल्ड बैंक विल गिव। करेक्ट करेक्ट। तो रादर देन कि हम उनके लिए डिसाइड करें, वर्ल्ड बैंक नॉर्मली इज ब्लेम्ड फॉर दैट कि हम्म। वर्ल्ड बैंक decides everything. You हम्म। know, we go as big bags of money and we kind of rule the roost. हम्म। So how do we empower that individual? So उसके लिए मैंने फिर स्टडी किया। किसी एक बंदे ने मेरे को, जस्ट लाइक आई वाज हैविंग लंच विद हिम एंड ही सेड, डू यू नो, बिकॉज दिमाग में ये सब चीजें रहती थी, हम बात करते थे इनके बारे में। राइट। तो उसने कहा कि हैव यू ट्राइड पीआरए? हम्म। पीआरए स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। हम्म। And I was fascinated when I studied that. I called up people who knew about it. I got in touch with email with people at IDS Sussex, which is Institute of Development Studies in UK in Sussex. And then I made up my mind we're going to do it. Now, इत्तेफाक से एक मीटिंग हो रही थी, उसमें विमेन डेवलपमेंट पे बात हो रही थी। तो मैंने कुछ अपने विचार दिए यही वाले कि हम्म। भाई, why don't we ask the women? Why are we deciding? So then my big boss there at the time, the director of the department, he said, Smita, you're going to take up this project. हम्म। And so project मुझे ही मिल गया। तो उस वो था मोरक्को में। हम्म। एंड मोरक्को, एज यू नो, वहाँ पे अरबिक और फ्रेंच बोली जाती है। राइट राइट। और मैंने थोड़ी सी फ्रेंच भी सीखी उस समय, अरबिक थोड़ी बहुत पिकअप हो गई। खैर एनीवे, तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया मोरक्को में। और मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉपुलेशन को कैसे इन्वॉल्व करूँ कि वो अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग करें। राइट मैम। तो पहले तो मिनिस्ट्री सारी इकट्ठी हो, तो 9 मिनिस्ट्रीज ऑफ मोरक्को के साथ मैंने जॉइंट मीटिंग करी। राइट। एंड उसके बाद हर चीज को मैंने ट्रांसपेरेंट रखा, लाइक जितने भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते थे सब 9 मिनिस्ट्रीज को देते थे, वगैरह वगैरह। अंततोगत्वा उसमें क्या हुआ कि हमने करीब 100 एनजीओज को इन्वॉल्व किया पूरे मोरक्को पे, हम्म। उनको एम्पावर किया। और हम्म। वो भी बहुत जब कहानी है कि कहाँ पे किया उनको, जैसे लोग जाके 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, हमने कहा नहीं नहीं, वील गो लिव विद देम। करेक्ट। एंड देन कुछ हमारे जो कंसल्टेंट्स थे यूके के और कनाडा ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, तो हम्म। उन्होंने कहा नहीं, वी वांट द होटल। मैं कहा आप लोग रहिए होटल में, जो मेरे साथ आना चाहता है वो गांव में आके रहे। तो वहां पे तो वहां बड़ा अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था वो गांव उनका। हम्म। और वहां पे बहुत बड़ा सरोवर भी है। इट्स इन दी बिगनिंग ऑफ द सहारा डेजर्ट। ओके तो ओके। वारसाजात करके एक एरिया था। हम्म। तो वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है वहाँ का, मुझे पता नहीं था उस समय, हम्म। क्योंकि वहाँ ट्राइबल लोग भी रहते हैं। तो हम्म। हम उनके साथ रहे और वहीं पे हमने ट्रेनिंग अरेंज करी एक बड़े होटल में। तो ये सारे एनजीओज आए, 101 लोग थे, उनको मैंने ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग थी पीआरए में कि आप कैसे पॉपुलेशंस को इन्वॉल्व करेंगे कि वो खुद डिसाइड करें हाउ टू स्पेंड द मनी इफ द वर्ल्ड बैंक गिव्स देम फंड्स। हम्म। तो वो स्टडी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। एक बार मेरे पास फोन आया मेरे डायरेक्टर का कि सुनीता, यू बेटर पैक अप एंड कम बैक होम। द Minister of Finance is complaining that you've gone to this very sensitive area and the people from there are very, very unhappy and all that. So I said, and he said, pack up everybody and get out of there, no training, nothing. So I said, Monsieur so and so, his name was. So I said, can you give me just 5 minutes? I'm ready to pack up and go back, but just give me 5 minutes. He was fuming on the other side of the phone from Rabat in Morocco. I said to him, देखिए ऐसा है कि for the first time हम लोग कुछ कर रहे हैं और हमने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है अपने आप जाके गांवों में लोगों से मिलने का। हम राइट। आपके एनजीओ के वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो खुद जाके पॉपुलेशन से पता करें उनको क्या चाहिए। और ये वर्ल्ड बैंक में पहली मिसाल है कि ऐसा कुछ हो रहा है वर्ल्ड बैंक में। और इसके लिए जापान ने फंडिंग दी है इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें जो है मैं आपको आके जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, एक दिन बचा है ट्रेनिंग का, मैं जैसे ही खत्म होती है मैं आपसे आके मिलती हूँ रबात में।
करेक्ट। तो मैंने वही किया, उन्होंने कहा ठीक है, he fumed, said okay fine, put the phone down. Then I went to meet him and he was again very furious when I met him. Finally वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और मुझे वहाँ पे जो प्रिंसेस हैं उन्होंने अवार्ड किया, यूनेस्को ने इसको एक्नॉलेज किया एंड ऑल दैट, और राइट। मुझे वर्ल्ड बैंक ने मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट का अवार्ड दिया इस प्रोजेक्ट के लिए. ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। But I nearly lost my job in the meantime. ओके ओके। Because कुछ करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा. तो एकदम आई एम विलिंग टू सही। वॉक अवे, अगर नहीं, ये नहीं कि हमारे अंदर हॉटीनेस है कि भाई हमारी बात मानेंगे, तो no, मेरे दिल में था आई हैव टू कन्विंस यू. कन्विंस यू, यस मैम, यही मैं अब बताना चाह रहा था। यही मैं बताना चाह रहा था, दर्शकों को भी मैं यही बताना चाह रहा था कि वहां पे अगर उनके बॉस ने, आपके बॉस ने आपको बोला कि आप वहां से निकल के बाहर आ जाओ, बहुत सेंसिटिव है ये, यहाँ पे आपको रहना सही नहीं है, और लोग भी नाराज हैं वहां पे, लेकिन आपने जिस तरह से उनको कन्विंस किया कि मैं, हम लोग फील्ड में नहीं जा रहे हैं, हम आपके लोगों को एनेबल कर रहे हैं और उनको फील्ड में उतार रहे हैं, सो दैट ये हो पाए। और वर्ल्ड बैंक इज ऑलरेडी लाइक डूइंग समथिंग प्रिटी न्यू, और उनको भी लगा कि शायद ये एक न्यू, लाइक इनोवेशन, यहाँ पे हम फिर से बोलेंगे कि हम जो हमेशा बताते रहते हैं कि हम इनोवेटर्स को लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे, लाइक यू नीड नॉट टू बी अ, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर टू बिकम अ इनोवेटर, लाइक इनोवेशन हर चीज पे है। इनोवेशन, आइडियाज की इनोवेशन, इनोवेशन नए एक तरह के सॉल्यूशन को इम्पार्ट करना, जहाँ पे जैसे चलना है उस तरह से मैम ने आप उस चीज को डाइवर्स किया, उस चीज को नए तरीके से देखा, समझा। और मैम मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो जर्नी है वहां पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में वही चल रहा है कि पापा ने मुझे जो बोला था वो चीज के लिए मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लूं कि मैं हर चीज को, आप किसी चीज से पीछे नहीं आ रहे थे। मैं ये देख रहा हूँ हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन आप निकाल रहे थे मैम, और उसी चीज को आपने आज शायद एक शेप दिया है, जिसके वजह से आज आप ये कर पाए हैं। आज इतने मतलब लाइक कमेंडेबल चीजें जो आज हो रही है सीएमएस के साथ, जैसे कि देवी संस्थान के साथ जो आप कर रहे हैं मैम, ये सारी चीजों के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे थे। यही मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मुझे हर पॉइंट पे ये दिख रहा था, हर पॉइंट में आप जब कुछ बता रहे थे मुझे यही दिख रहा था कि मैम अपने आप को फुल तैयार कर रही है, और मैम वहां तक पहुंचेगी, अब पहुंचेगी, अब बोलेंगे, ये बोलेंगे कि यहाँ से ये हुआ। तो वर्ल्ड बैंक को मैंने कैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, कैसे ये किया। तो मैम मैं रियली रियली एक्साइटेड टू टू नो मोर, एंड ओवर टू यू मैम। एंड दर्शक बने रहिए हमारे साथ, और देखिए मैम ने कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ है। हम लोग पीछे जाएंगे, फिर मैम जहाँ पे है वहाँ भी बात करेंगे। उन्होंने हर तरह के काम को छोटा नहीं समझ के अपने आप को यूके में उस समय में एस्टेब्लिश किया, जिस समय में बहुत कम लोग वहाँ पे जाते थे, और कोई अगर वहाँ जाते भी थे तो उनको ऑलरेडी कोई रिकमेंडेशन मिला हुआ होता था या तो कुछ हुआ था, लेकिन मैम यहाँ से निकले विदाउट एनीथिंग, एंड मैम ने वहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और उन्हा वहाँ के एजुकेशनल संस्थाओं ने समझा, वहाँ के बैंक ने समझा कि ये है हमारे सुपर पावर्स जो हमें आगे ले जा सकते हैं, इवन दो दे आर नॉट फ्रॉम आवर कंट्री। दैट एप्रिसिएशन only can come, only and only can bring in by सुपर डेडिकेशन, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये हमें सीखना चाहिए। मैम ओवर टू यू, और जानना चाहेंगे? नहीं, मेरे को बस पापा की बात याद आती है कि उन्होंने जैसे एक नेटिव अमेरिकन्स की कहावत है हम्म कि बर्ड को, हम्म एक मदर बर्ड हम्म अपने बच्चे को हम्म क्लिफ से फेंक देती है, फेंक देती हैं, हाँ। और उसको Great. विश्वास है कि वो फ्लाई करेगा. ओफ, ये तो है ना? मतलब मुझे गूज बम्स आ गए मैम। यही हुआ आपके साथ, तो एकदम एग्जैक्टली यही हुआ है मैम, एकदम यही हुआ है। राइट. तो बेसिकली उस समय तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमें नहीं मुश्किल लगा. हम्म। हमें लगा कि ये तो करना है. करना है, राइट। राइट. राइट। अब जब लोग वापस देखते हैं तो हम भी हैरान होते हैं कि अरे हमने कैसे कर लिया. राइट। लेकिन ये है कि हमें
जब पापा मम्मी ने जो विचार डाले कि भाई शिक्षा पे ध्यान दो, दिन रात पढ़ो, मेहनत करो, हम्म और हम लोग उनकी बातें मानते थे। हम्म आज के बच्चे शायद भूल जाते हैं कि मम्मी पापा के अंदर कोई हुनर है, कुछ है, वो हम्म अपने कोई महान समझ लेते हैं। राइट। तो फिर वो मम्मी पापा की बात नहीं मानते, तो हम लोग बहुत मतलब हम पूरे 4 बच्चे हैं हम लोग। तो मम्मी पापा की बात को बिल्कुल लकीर के फकीर थे, हर बात मानते थे उनकी, चैलेंज करते थे उनको। चैलेंज नहीं राइट। करते। हाँ, इस चीज पे नहीं चैलेंज करते थे, और विचार के पापा तो बहुत ओपन एनवायरनमेंट रखा, मम्मी ने भी अभी तक 92 है, और वो मतलब हमेशा हमको उन्होंने प्रोत्साहन दिया, हर चीज के लिए कहा, पकअप किया, कर सकते हो, करो, आगे बढ़ो। तो वहां से ये था कि पापा वहां पे पहुंचे हमारे अ, अ, वॉशिंगटन में एक दिन, क्योंकि वो कोई एक सोसाइटी, उसके वो इंटरनेशनल बॉडी के मेंबर थे, तो उन्होंने टिकट विकेट दिया था, वो गए वहां। तो जब वो वहां पे गए तो मेरे ऑफिस में भी आए, वर्ल्ड बैंक में मेरा बहुत लैविश बड़ा सा ऑफिस था ओह, बाय दिस टाइम। तो पापा ने ऐसे करके देखा, थोड़ा बहुत समझा, फिर मेरे से बोला उन्होंने कि बेटा, ये सब मिथ है, यू वाह, नो वाह, और उन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे हम लोग, इट्स लाइक स्लो पॉइजनिंग, ही यूज द टर्म, ओहो, धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग होता है, हम सोच रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम रियली समाज की सेवा कर रहे हैं? तो दोबारा से सोचो, और मैं चाहूंगा तुम भारत वापस आओ। राइट। तो ही इम्प्लांटेड दैट थॉट। आई वाज इन मिडिल ऑफ माय करियर, 10 साल ही मैंने काम किया हुआ था तब तक, ऑलमोस्ट 9.5 के आसपास था। तो फिर मैंने अपने वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट को, बिकॉज मेरा ये अवार्ड भी मिला था और मैं उनके साथ कोपेनहेगन भी जा रही थी, तो मैंने कहा कि मैं वर्ल्ड बैंक छोड़ रही हूँ। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, नहीं नहीं रही। मैंने कहा नहीं, मुझे ट्रेंचेस में काम करना है, मुझे गरीब लोगों के साथ काम करना है, वहां बैठना है, समझना है, क्योंकि मैंने बहुत साल बिता दिए पॉलिसी में। तो ऑफ कोर्स ही केप्ट इंसिस्टिंग, बट देन आई हैड मेड अप माय माइंड, बिकॉज पापा ने कहा था वापस आ जाओ। तो मेरे मन में ये था कि मैं जब भारत वापस आऊंगी तो साथ में पापा मम्मी की सेवा के अलावा मैं गरीब बच्चों की सेवा करूँ। तो क्या होगा उसका रूप मुझे नहीं पता था, लेकिन ये था कि लिटरेसी और एजुकेशन पे काम करना है। तो फिर मैंने पैकअप करके वापस आ गई भारत मिड करियर में, मतलब आई वाज ऑन अ रोल, हम्म आगे बढ़, बहुत अच्छी सैलरीज थी वहां वर्ल्ड बैंक में, फर्स्ट क्लास हम ट्रैवल करते थे, हम्म रेड कार्पेट ट्रीटमेंट हमें मिलता था, हम कॉनकॉर्ड पे भी 2 बार फ्लाई किया उन्हें। हम्म तो अब कॉनकॉर्ड है भी नहीं। तो बेसिकली वो सारी सहूलियत हमें मिलती थी, बिकॉज आई वाज अ मैनेजर, एंड वर्ल्ड बैंक इज अ वेरी रिच इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दैट। लेकिन मेरे दिल में था कि ये नहीं, मुझे मतलब इट इज करेक्ट, स्लो पॉइजनिंग है, और हम जैसे अच्छे अच्छे सूट्स पहन के जा रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यू नो कई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो वो मेरी तरह आगे बढ़ेंगे। करेक्ट, करेक्ट मैम, करेक्ट। आपके जैसे और कितने मतलब आज डॉक्टर सुनीता गांधी, जैसे कि हम आज प्रिविलेज थे, ऐसे और कितने डॉक्टर सुनीता गांधी हमारे सामने चाहिए। वो चीज को अंकल ने देखा, मतलब आपके पापा ने उस चीज को देखा, और आपको उनका वो जो विजिट है, वो विजिट एक्चुअली आज वो रंग लाई है। वो मतलब ऑब्वियसली आप फोकस तो थे ही थे, और आपने एक बार भी मतलब उस डिसीजन, जो वो जो बात पापा ने बोला, बताया आपको कि आपको देश आना है, ये स्लो पॉइजनिंग है, यहाँ पे आपको रौनक शौनक, जैसे कि आपने भी बताया, आपने कॉनकॉर्ड में लाइक फ्लाई किया, आपने फर्स्ट क्लास, ये सारी चीजें जो होती है, ये ऐसा होता है कि मतलब you know, no disregard to World Bank or any organization who provides this kind of facilities, but ये होता है कि ये आपको रखे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। आपको अगर ये सारी चीजें मिलेगी तभी आप रुकोगे। अदरवाइज उनको तो पता है कि ये तो बम के जैसे फटेंगे, ये तो कहीं भी जाएंगे, बड़ा ही करेंगे। तो उनको आपको रखना था, इसीलिए आपको ये सारी चीजें दे रहे थे। तो पापा ने ये चीज आपके सामने फिर से रखी कि देखिए, ये नहीं सोचना है कहाँ क्या बात थी, क्या करके हमने वहां से अपनी जर्नी शुरू की थी, उसको याद करो। और आपने एक बार भी उस चीज पे डबल थॉट नहीं दिया, और इमीडिएटली आपने उस पे एक्शन लिया। ये आज के युवा को सीखना चाहिए कि आपके मेंटर, जो मेंटर है आपके, जो लाइक जिनसे आपने सारी चीज़ों का एक इंस्पिरेशन लिया हुआ है, और आपको जहाँ पे पता है कि यहाँ से जो आएगा वो ही मेन उद्देश्य है, उस चीज़ को हम भूल चुके हैं। नो डिसरिगार्ड टू एनी जनरेशन, आजकल जेन जी के बारे में बात होती है, जेन एक्स के बारे में बात होती है। तो जेन एक्स, जेन जी, ये सब सारी चीज बात होती है, सबके सब अपने अपने जगह पे ठीक है।
लेकिन जैसे मैम आपने और एक बड़ी चीज बताई आजकल के दिन में, जैसे कि एआई की बात चल रही है, हम इस पे भी आएंगे, इस टॉपिक में भी आएंगे, आपसे पूछेंगे कि एआई का क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपका क्या थॉट है इसमें। आज एआई के युग में आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं कि एजुकेशन की क्या जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है ना, सब कुछ अवेलेबल है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एक टॉपिक है, किसी चीज पे अगर काम करना है तो हम एक वीडियो देख लेंगे, एक एआई बॉट बना लेंगे, है ना, एक एआई एजेंट बना लेंगे, वो मेरे लिए काम करते रहेगा, बहुत सारी चीजें। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, सो मुझे भी हाँ यही चीज दिखने को मिलती है हर रोजमर्रा में कि एआई बॉट्स से ही सब कुछ काम कर लेंगे, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने की। दे आर ट्राइंग टू लाइक पुट अक्रॉस द थॉट, थॉट अभी तक तो थॉट है, आई डोंट नो हाउ इट विल गो फॉरवर्ड। लेकिन आपने जो बताया कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके क्या मिल सकता है, तो मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि वहाँ पे जो डिस्कशंस होती है, जो आप एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो, आप जिनसे मिलते हो, बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं, उनसे बात होती है, जो ये डिस्कशंस है, जो वो मतलब उनके अपने विचार रखते हैं, जो मैम ने अपना विचार रखा, किसी ने सुना, तो वहाँ पे इमीडिएटली मैम के पास ऑफर्स आ गए कि आप हमारे लिए काम कीजिए, आप कर सकते हो हमारे लिए काम। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एजुकेशनल लाइक वैल्यूज को जो आज आज के समाज ने डिग्रेड करके रखा है, जो मतलब बताते हैं कि उसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं रही है, तो वो एक्चुअल में इस तरह से देखना चाहिए, हमें हमें इस तरह से देखना चाहिए कि हम वहाँ जाके करेंगे क्या, हमें वो एनवायरनमेंट मिलेगा कहाँ। तो मैम मैं आपके पूरे जर्नी को अभी नोट करते जा रहा हूँ, एवरी पॉइंट इज बीन नोटेड विथ मी, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ पेनिंग डाउन एवरी मोमेंट दैट आई एम स्पेंडिंग विथ यू। एंड मैम रियली रियली कमेंडेबल, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे पर्सनली, एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे दर्शक बहुत खुश होंगे आज, और मैं ये पॉडकास्ट को लेके जाना चाहूँगा टू ऑल द न्यू like people who have their like responsibility towards the society, जो अपने आप को लेके आना चाहते हैं और जो अभी सोच भी नहीं रहे होंगे, डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद उनके अंदर भी ये जाग उठेगा कि हमें क्या करना है सोसाइटी के लिए, और नहीं तो अपने सेक्टर में, अपने सेक्टर में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम का अलग विजन है, आपका विजन अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये जो करने का जो एक जज्बा है, जो करने का जो एक प्रोसेस है, और हर पॉइंट पे कैसे मैम ने अपने आप को मोल्ड किया और मैम ने आपको अपने आप को ऑर्केस्ट्रेट किया, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सीखना। तो हम मैम से और जानेंगे आगे, हम मैम को यहाँ तक ले जाएंगे कि उनका सीएमएस में फिर मैम ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि मैम ने ऑलरेडी बताया कि वो अभी इंडिया वापस आ रही है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम मूवी के इस दौरान पे आ गए कि मैम की इंडिया की वापसी होने वाली है, और वहां पे फिर शुरू होने वाला है संघर्ष, जो आज एक अलग लेवल पे जा चुका है। हम आगे आगे बात करेंगे देवी संस्थान के बारे में, सीएमएस में क्या कंट्रीब्यूशन है, और टेक्नोलॉजी के बारे में मैम का क्या क्या विचार है। तो मैम आपके सामने है, प्लीज आप अपने विचार हमारे सामने रखिए, and really really happy, and I am, you can see me where I am at this moment, really excited. Nandji, really awesome to be, discussing with you because you're such a natural host. Really nice to have you there. Thank you, thank So, yeah, because, it's basically kahani in a way of a journey, if you like, of someone. तो उसके बाद फिर मैं वापस आई भारत, एंड भारत आके फिर मैंने सोचा पापा मम्मी की सेवा तो करी, स्टार्ट कर दिया मैंने सीएमएस में काम करना। आई वाज मोर लाइक एन असिस्टेंट टू पापा एंड मम्मी, जो भी वो कहते थे करते थे। लेकिन मेरा जो निजी इंटरेस्ट था वो एकेडमिक्स में था, you. content of education, how we teach what we teach, and how do you engage the psychology of the child. So I started to do a lot more research, and in that research I discovered some amazing things. So लेकिन जो मेरी रिसर्च, बेस्ट रिसर्च हुई वो स्लम्स ऑफ लखनऊ में हुई। एंड रीजन वाज कि मैंने जो मोर्चा लिया था कि भाई मुझे बच्चों को एजुकेट करना है जो गरीब वर्ग के हैं, तो कहाँ से कहानी शुरू करें, तो मैंने देखा लिटरेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
राइट। तो मैं स्लम में जाके बैठती थी उनके साथ और बातचीत करती थी। और मुझे लगा कि मतलब उनकी भी अपनी एक दुनिया है, बहुत ही रिच है उनके दिमाग में। हर तरह के सपने हैं उनके दिमाग में, अपने बच्चों के लिए एस्पिरेशंस हैं, ये मैम बड़े लोग कौन से हों। साल की बात है, ये कौन से साल आप लौट के आए? I was coming and going over the period from 2006 to 2012, 13। बीच 2006 बीच में से हम टाइम मतलब ये आना आपका शुरू कर दिया था ट्रांजिशन मैंने। शुरू हो गया था, राइट? हाँ, मतलब दिमाग में ट्रांजिशन शुरू हो गया था। हम्म। और उसके बाद फिर मैं जब प्रॉपरली यहाँ पे आई और फिर मैंने रिसर्च शुरू करी, तो उसमें मतलब इतना फ्रेंजी टाइप हो गया दिमाग में कि ये करना ही करना है। मेरे को दिमाग में ये आया कि ये लोग सब कुछ तो जानते हैं, इनके अंदर कोई कमी नहीं है, बस अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिली, जैसे हमको अपॉर्चुनिटी मिली हम आगे निकल पाए। तो करेक्ट। एक पढ़ना लिखना, उसमें भी न्यूनतम जो लेवल है जिसे कहते हैं फाउंडेशनल, हम्म। बुनियादी शिक्षा, हम्म। जिसमें आता है कि एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू राइट, एबिलिटी टू डू बेसिक अरिथमेटिक। और वो कई अडल्ट और बच्चे वंचित थे। तो करेक्ट। इट्स लाइक नॉट हैविंग दैट विजन। हम्म। एंड उसकी वजह से पूरी लाइफ उनकी हॉस्टेज हो रही थी। करेक्ट करेक्ट मैम। तो उसके लिए क्या किया है, तो मैं जब जाती थी गवर्नमेंट ऑफिस में, कहती थी कि देयर इज अ लिटरेसी प्रॉब्लम, आई वांट टू हेल्प विद दैट। सो हमें जवाब ये मिलता था कि मैम अब हम लोग लिटरेसी पे नहीं है, लिटरेसी तो हमने कई साल पहले उसको ओवरकम कर लिया है। अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी नहीं है बट हम लोग बहुत उस पे आ गए हैं, सर्व शिक्षा पे, और जो शिक्षा है उस पे आ गए हैं, नॉट क्वालिटी एजुकेशन पे आ गए हैं, नॉट लिटरेसी। तो फिर मैंने कहा लेकिन मैं जिन लोगों से मिल रही हूँ वो तो नहीं लिटरेट हैं, और बहुत सारे नहीं, सारे बच्चे एडमिटेड हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। राइट। तो लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, सही नहीं। तो फिर मैंने जब वहां पे गई मैं समझ में, तो मैंने अपने को कहा कि क्या ये लोग, एक प्रश्न पूछा, जब मैं फिजिसिस्ट हूँ, तो फिजिसिस्ट ऑलवेज आस्क व्हाई। ये तो नहीं, इस काम आ गया आपका, हाँ। या ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सब कुछ है इनके पास, मे भी पैसे नहीं है बट सब कुछ है, भगवान की गिवन सारी शक्तियां हैं। राइट। और क्या मात्र 48 हिंदी के लेटर्स जो मेन लेटर्स हैं, और 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश, ये इसकी वजह से पूरी जिंदगी क्यों हॉस्टेज बन रही है इनकी। तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि क्या मात्र 30 दिन में, और हर दिन केवल 30 मिनट्स पर डे देने पे, क्या एक बंदा जो जीरो लेटर्स जानता है आज की डेट में अखबार पढ़ने लायक हो जाएगा करेक्ट। मात्र 30 दिन में? दैट्स एन इम्पॉसिबल क्वेश्चन, राइट? नोबडी इन द राइट माइंड वुड थिंक ये हो पाएगा। लेकिन मैंने इस तरह के बहुत सवाल पहले भी पूछे थे, इम्पॉसिबल टाइप्स। तो फिर उस पर मैं कार्यरत हो गई। मतलब एक तरह की लाइक इतना अरमान था मेरे उस समय कि बिल्कुल एक फ्रेंजी थी, वही करना था और कुछ करना ही नहीं था। दिन रात उसके बारे में सोचना, आइडियाज ट्राई करना, वहां जाके मिलना, ये सब करना। मेरी एक खुद की मेट थी, बेबी। तो शी ओनली न्यू द लेटर बा, सो शी बिकेम माई टेस्ट केस ऑल्सो। एंड एक बार मैं बड़ौदा से लखनऊ आ रही थी फ्लाइट में, तो मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा ये ट्राई करते हैं, और उसको मैंने ट्राई किया। एंड रियली अभी भी मेरे को गूज़बम्प्स आते हैं, मैं सोचती हूँ उसके बारे में। तो वो वर्क कर गया। अच्छा। एंड 30 days में adults and 8-year-olds and above would be able to read a newspaper, most of them. So कैसे possible है, right? And even 6-year-olds, 5-year-olds are now reading newspapers. राइट राइट। कैसे possible है? तो उसमें ये है कि हम जिस तरह से करते आए हैं चीजें, उस तरह से नहीं पॉसिबल होगा। जब हम एग्जैक्ट। लेके जाते हैं किसी गवर्नमेंट के पास या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो पहले तो वो रिजेक्ट करते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन मेरे रिजल्ट्स में निकल के आया ये, तो बयान अपना सबसे इम्पोर्टेंट बयान होता है। फिर मैंने बच्चों को लगाया, मैंने कहा बच्चे मेरी सुन लेंगे। तो फिर मैंने 5th 6th 7th 8th 12th के बच्चों को, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के, और साथ में मेरा अपना एक स्कूल है सिटी इंटरनेशनल स्कूल। सबसे पहले पहले मैंने जो भी चीजें मैं करती हूँ सीएमएस में, पहले मैं सीआईएस में करती हूँ। ओके। तो सिटी इंटरनेशनल स्कूल में 17 अप्रैल 2014 की बात है, मैंने अपने बच्चों को भेजा स्लम्स में, वहां के आसपास जो बस्तियां हैं, वहां से उनको बस में वो भर के लेके आए। उनको कन्विंस कराया, चलिए मैडम एक एक घंटे के लिए चलिए, बच्चों को भी कन्विंस कराया, आ गए वो। और उनको मैंने एक छोटी सी पतली सी बुक स्पाइरल बाउंड प्रिंट करके मैंने दी कि इससे पढ़ाओ, क्योंकि ये विचित्र तरीका है इसको ऐसे पढ़ाना। उनको 1 घंटे का लेसन दिया, वो समझ गए, बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं आज के। राइट मैम। तो वो फिर उन्होंने फटाफट उनको पढ़ाया, और उनको बड़ा मजा आया बच्चों को पढ़ाने में। और जो पढ़ के गए वो पढ़ना चाहते थे, उनका मन था कि चलो बार बार आ जाए और कर लें। तो फिर इतना एक्साइटेड मैं हो गई उसको देख करके
कि बच्चों का जोश देख करके कि मैंने उसको उसी साल 80,000 टूल किट अप्रैल में ही प्रिंट करने का ऑर्डर दे दिया। ये 17 अप्रैल की बात थी। एक हफ्ते में ही हमने ऑर्डर दे दिया। और मई 5 डीएम ने डिक्लेयर कर दिया कि स्कूल सारे बंद होने हैं। लेकिन उसके पहले पहले यहाँ की एक प्रेस है, उसको मैंने कहा दिन रात लग जाओ, एक्स्ट्रा खर्चा दे देंगे, कोई वरी नहीं है। हम्म। फ्री में 67,000 टूल किट्स इन्हें हम कहते हैं, पतली सी किताब और एक कार्ड्स थे, गेम्स टाइप थे। वो 67,000 बच्चों के हाथ में पकड़ा दी, ऑफ 150 स्कूल्स ऑफ लखनऊ प्लस उन्नाव प्लस बाराबंकी प्लस हम कानपुर। हम्म। हम्म। तो मैंने बहुत सारे लोगों को लगा दिया कि आप जाओ स्कूलों में, बोलो ये फ्री में हम दे रहे हैं, और आप इसको एज समर कैंपेन चलाइए। कि मई 5 को स्कूल बंद हो गए, तो हम्म। तब तक 67,000। स्कूलों ने भी बहुत सहयोग किया कि प्रिंसिपल से कहा ठीक है, समर ब्रेक है, बच्चों का ये कर सकते हैं। तो पतली हम्म। पतली किताबें, 28 पेज की किताब थी, बुकलेट, राइट। एंड उसमें रीडिंग राइटिंग दोनों था। हम्म। और बच्चों ने इतना कमाल किया, आई कैनॉट टेल यू। तो फिर जुलाई में जब हमने उनके पोर्टफोलियो कलेक्ट किए, तो उसमें एक लेटर भी था विद पोर्टफोलियो कि आप अपने लर्नर का पोर्टफोलियो बनाइए, उसकी पिक्चर लगाइए, उसके बारे में बताइए, और उससे आप क्या सीख रहे हैं वो बताइए, ये सारी चीजें उसमें डालें। और उसके बाद फिर जब वो वापस आया, तो मेरे तो बिल्कुल आंखें खुल गई कि वाओ, इट्स अ बिग फोर्स वी आर नॉट यूजिंग। और विदेशों में तो बच्चों को हम यूज करते हैं कि भाई आप सेवा का काम करेंगे। भारत में भी था, हमारे पास ये था कि हम लोग का एक सोशल सर्विस का प्रोजेक्ट होता था जहाँ मैं पढ़ी थी पहले। तो पता नहीं क्यों, मतलब वो धीरे धीरे इतना ज्यादा फोर्स नहीं है इसमें, या होना चाहिए, मतलब कि बच्चे लगे सेवा में। तो बच्चों ने बहुत कमाल करके दिया। बच्चों बच्चों के अंदर आइडियलिज्म होता है, वो कुछ करना चाहते हैं, और जब वो टीचर बनते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब मैंने सीखा उस समय कि ये राइट। एक्चुअली एक तरीका हो सकता है भारत को साक्षर करने का। और मेरा फिर जोश और भी बढ़ा, क्योंकि मेरा जो मकसद है इस समय वो है कि भारत को साक्षर करें। और इस पद्धति से, और 30 दिन में जो लोग पढ़ पाते हैं, पढ़ने के अलावा मैंने इसमें गणित जोड़ दी है, तो हम 45 दिन देते हैं, और उसमें बच्चे और अडल्ट सब पढ़ सकते हैं। तो पहले तो अडल्ट लिटरेसी और चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल, उनके ऊपर काम किया, चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल पे। फिर मैंने 8 साल प्रयत्न किया कि इसको 2014 से लेके 2022 तक, कि हम्म। इसको हम एक स्कूल की पद्धति भी बनाएं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को हम ये दें। तो मुझे पहले सीखना था गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, जैसे मैंने सीखा स्लम वालों से। करेक्ट, करेक्ट। अ, तो उनसे मैंने मुझे सीखना था। तो मैं फिर मैंने गवर्नमेंट परमिशन से 6 स्कूल लखनऊ के लिए, जहाँ मैंने जाके कुछ आइडियाज ट्राई किए। 5 स्कूल हमीरपुर के लिए। फिर डायट लखनऊ, वहाँ की उस समय जो प्रिंसिपल थी डायट लखनऊ की, ललिता प्रदीप, ओके। तो उन्होंने मुझे बहुत एंटरटेन किया, और उन्होंने कहा कि नहीं सुनीता जी करते हैं। उन्होंने इसको कंपलसरी कोर्स कर दिया 10 साल बीटीसी स्टूडेंट्स के लिए। राइट। और हमने उसमें फिर 155 उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो आजकल डीएलईडी कहते हैं, उसमें बीटीसी कहते थे, उनको फिर उन्होंने 85 स्कूल्स में भेजा। हमने उनको ट्रेनिंग करी करी उन्होंने उस पद्धति से पढ़ाया बच्चों को। फिर रिजल्ट्स आए, लेकिन तब भी हम संतुष्ट नहीं थे, तो मुझे काफी टाइम लगा अ, एक डेवलप करने में इस पद्धति को, जिसको हम 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मैंने फोन किया, यहाँ से मैसेज डाला अनीता कारवाल जी को, जो सेक्रेटरी एमओई थी। उनसे हम मिल चुके थे, तो उनका नंबर भी था मेरे पास। मैंने कहा मैम, रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आ रहे हैं इस पद्धति से। इसका मैंने नाम दिया अल्फा, अल्फा। एक्सिलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, ALFA, ओके। एक्सिलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया कि मैम, अखबार में भी आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको न्यूज़ भेजूंगी, कल निकल रही है। और यहाँ पे मैंने बुला लिया था, उस समय के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे, उनको भी बुला लिया था, और अन्य वरिष्ठ लोगों को बुलाया, तो पूरी प्रेस को बुलाया कि आप देखिए पूरा पूरा क्लास पढ़ रहा है, राइट। करेक्ट, तो करेक्ट। फिर उन्होंने हमको कहा कि अच्छा सुनीता, लेट्स डू अ मीटिंग। तो हमने ऑनलाइन इसी तरह की मीटिंग करी। और उसमें फिर उन्होंने कहा कि हम आपको शामली उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, मुजफ्फरनगर के पास है, दिल्ली के पास है, यहाँ से करीब 11 घंटा कार से जाने का है। तो वो दिया उन्होंने कि आप उसमें जाके शुरू करिए और पूरे जिले को करिए। अ, तो मैंने कहा मैम, इफ यू डोंट माइंड, मैं पहले इसकी एक रिसर्च स्टडी करूंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इसमें विश्वास कर ही नहीं रहे हैं। कर ही नहीं रहे। तो राइट। फिर मैंने कहा ठीक है, आप रिसर्च स्टडी कर लीजिए। 10+10 स्कूल्स की बात हुई। टेन हम्म। प्लस टेन स्कूल्स, वहाँ की डीएम डीएम मैडम थी जसजीत कौर। हम्म। तो उन्होंने इसको बहुत ही सहयोग दिया, उन्होंने कि करते हैं। तो 20 स्कूल सेलेक्ट हुए उन्हीं की तरफ से, रैंडम सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं। एक RCT, एक डिजाइन होता है रिसर्च का, जिसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं, जिसमें 10 स्कूल ये जो हमारा अल्फा करेंगे, और 10 स्कूल जो हम केवल टेस्टिंग के लिए रखेंगे। करेक्ट। तो स्कूल चयन के बाद फिर 20 स्कूलों का बेसलाइन टेस्टिंग हुई, और मात्र 40 दिन बाद
हमने पोस्ट टेस्ट किया उन 20 स्कूलों का दोबारा। करेक्ट तो मैम। क्या ये जो स्कूल जो कंट्रोल में थे, जिन्होंने हमारा अल्फा नहीं किया, हम्म। उनकी कितनी प्रगति हुई? और ये हम्म। कोविड के बच्चे थे, 22 की बात हो रही है। कोविड से निकले थे जून जुलाई में, उनको कुछ एक अक्षर भी नहीं आता। कक्षा 1 2 3 के बच्चे तो कुछ भी नहीं जानते थे बेचारे। फोर्थ राइट। एंड फिफ्थ के थोड़ा बहुत उनको याद था, जानते थे। हम्म। लेकिन ये बच्चे, इनको जो हमने 40 डेज बाद अल्फा वाले ग्रुप को टेस्ट किया, तो उनकी क्या लर्निंग थी, क्या ज्यादा थी। हम्म। और इसमें मैंने फिर इनवाइट किया थर्ड पार्टी वैलिडेशन, बिकॉज हमारा वैलिडेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। नहीं होगी, राइट। राइट। सो ये। फिर हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, जो आप सब लोग जानते हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो हम्म। वहाँ के प्रोफेसर फर्नांडो रेमर से रिक्वेस्ट करी कि वो अपने मास्टर्स लेवल स्टूडेंट्स को अटैच करें, कि वो इस पे रिसर्च स्क्रूटनी करें, रिसर्च वैलिडेशन करें। तो उन्होंने हमारी बात मान ली, उन्होंने रिसर्च डेटा और ये सब पूरा वैलिडेशन किया। यहाँ के जो डीजीएससी थे उस समय, जिनका नाम मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, जो कि थे विजय किरण आनंद। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और बहुत ज्यादा सहयोग दिया, और कहा तुम कर लोगे। और ऑफ कोर्स अनीता जी, विजय किरण आनंद, जसजीत कौर, आई मीन, दे हेल्प मी मेक दिस पॉसिबल। Again some new people who has given you the positive things, like आप कर सकते हो, फिर से आप आपके कर सकते करियर में और एक कर सकते हो आ गए हैं। और जो हैं। बिल्कुल जिन्होंने, बिल्कुल। हाँ, राइट राइट। और मैम उन्होंने मैं बस यहाँ कुछ पे एक, विश्वास की कमी होती है, जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट कुछ मैम, करना चाहते हैं, तो कई लोग कहते हैं नहीं हो पाएगा, इमीडिएटली कह देते हैं, क्योंकि राइट, उनके दिमाग में वो चीज हो ही नहीं पाएगी किसी और तरीके से। एग्जैक्टली तो मैम, वो एग्जैक्टली। हमें डिस्करेज कर देते हैं। करेक्ट। एंड हमें उनके डिस्करेजमेंट पे नहीं जाना है। नहीं जाना है। हमें अपने लक्ष्य को सामने रखना है, बिल्कुल। और कोई और बंदा ढूंढ लेना है जो हमें अलाउ करे। खैर एनीवे, हमें एग्जैक्टली। मिल गए। तो एग्जैक्टली। इन्होंने हमसे कहा, जब ये आरसीटी रिजल्ट्स निकल के आए, हार्वर्ड ने उसके बारे में लिखा, तो इन लोगों ने विजय किरण आनंद जी को भी इंटरव्यू किया, उन्होंने अनीता कारवाल जी को भी इंटरव्यू किया, उन्होंने संजय कुमार जी, जो उसी समय अनीता जी जब रिटायर हुई, वी आर टॉकिंग अबाउट नवंबर ऑफ 2022, तो उनको भी उन्होंने इंटरव्यू किया, संजय कुमार जी को, जो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है, जो एमओई के सेक्रेटरी इस समय है। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है उनसे अभी रिसेंटली मिलने का भी। तो उस समय भी हम मिले थे उनसे, जो हमारी आरसीटी के समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और उन्होंने वहाँ हर स्टेक होल्डर से बात करी, टीचर से बात करी, वहाँ के जो मिडिल लेवल मैनेजर्स उनसे बात करी। एनीवे, पॉइंट, बहुत स्क्रूटनी के बाद उन्होंने जो रिजल्ट लिखे, तो वो वर्ल्ड के अमंग्स द बेस्ट आउटकम्स थे, एफएलएन के, करेक्ट मैम, करेक्ट। फाउंडेशन इलेक्ट्रिसिटी यूनिवर्सिटी के। तो पॉइंट ये है कि 40 दिन में बच्चे पढ़ने लायक हो गए, जैसे किसी ने सोचा नहीं था। फिर विजय किरण आनंद जी ने मेरे को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया, उनका, आप कितने जिले करना चाहते हो ले लो, यूपी के। तो फिर मैंने कहा नहीं सर, मैं अभी केवल 4 जिलों में काम करना चाहती हूँ, पायलट करना चाहती हूँ, फर्दर पायलट, फर्दर रिसर्च। तो फिर 717 स्कूल 2023 में हमें मिले, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया। उसके बाद फिर हमें यही 4 जिले पूर्णतः मिल गए 24 में। तो 24 में हमें मिल गए, जो जिले हैं हमारे, वो लखनऊ है, उन्नाव है, बाराबंकी है और शामली है। तो इनमें 7,500 स्कूल हैं, जिनमें हमने फिर 24 में काम शुरू किया। 24 दिसंबर में इंडियन गवर्नमेंट का एनसीईआरटी का एक टेस्ट हुआ, जिसमें कि एट स्केल पूरे 800 डिस्ट्रिक्ट्स जो भी हैं भारत के, उनमें टेस्ट हुआ। और हमारे जो 4 जिले थे यूपी में, एज अ ग्रुप, एज अ क्लस्टर, एनजीओ क्लस्टर, दे केम आउट अहेड ऑफ यूपी का जो इम्प्रूवमेंट हुआ। अब यूपी का भी इम्प्रूवमेंट जो हुआ, वो हमारी वजह से नहीं हुआ, वो विजय किरण आनंद और जो बाकी बहुत सारे अमेजिंग लोग उसके बाद जुड़े यूपी एजुकेशन से, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे हो, चाहे वो डीजीएससी लेवल पे हो, और अन्य लोग, तो उन लोगों की, उनका श्रेय है। एससीईआरटी के लोग हैं, उन्होंने किया। मेरा तो यह है कि ये 4 जिलों में जो पद्धति थी वो बदली, एंड पद्धति। पद्धति बदलने पे शायद वो रिजल्ट इतना अच्छा आया। और वो बहुत कम महीनों में, कई लोगों को 3 3 साल मिले। 21 से 24 में जो प्रगति हुई, लखनऊ में जैसे फॉर एग्जाम्पल 17 और 19% हुई लैंग्वेज और गणित में, जबकि पूरे यूपी का 10% ये हुआ। बहुत तो अच्छा। 10% बहुत ज्यादा था। बहुत यूपी ज्यादा। 7th रैंक पे आ गया पूरे भारत में। इट वाज Yes. अनबिलीवेबल रिजल्ट। और मेन यूपी बात की ये सब है। वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा श्रेय नहीं है, मैं कहना चाहूंगी, वो श्रेय गवर्नमेंट का है। लेकिन जो 4 जिलों में, जहाँ की ये इतने बड़ा प्रगति हुई एज अ ग्रुप, राइट मैम। दैट आई कैन से इज बिकॉज ऑफ दिस पद्धति कॉल्ड अल्फा। और टीचरों ने उसे अपनाया, और वहां पर भी मैं कहना चाहूंगी कि करवाने वाले जो लोग थे, वो, उनकी महत्ता ज्यादा होती है। वो थे वहाँ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, वहाँ के
एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स, वहाँ के संकुल्स, वहाँ के जो SRGs हैं, DC, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर एकेडमिक्स, हम्म। ये बहुत ही अमेजिंग लोग, इन लोगों ने बहुत बहुत सहयोग दिया, और टीचर्स ने तो कमाल किया। और राइट। उसी की वजह से अल्फा के रिजल्ट बहुत ही कम समय में इतने बड़े आ पाए। हम 3 साल कार्यरत हैं आफ्टर राइट। द पायलट। 3 साल में हम स्केल पे आ गए हैं, बहुत ज्यादा बड़ी स्केल मिल गई है हमें। इस साल 1,50,000 स्कूल का MOU मिला है, सब मिला देखिए। के, और 14 प्रदेशों में MOU मिल गए हैं, देखिए, जिसमें 4 पूर्णतः पूरे पूरे प्रदेश मिल गए आपने हैं। पहली बात तो ये है कि आपने यूपी से शुरू किया, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में, और वहाँ पे आपने एक चेंज लाया। तो मैम, मैं यहाँ पे और तो दो तीन डॉट्स लाइक ज्वाइन करना चाहूँगा। जैसे कि आपने अपने आप को प्रूव किया समाज के सामने कि आप कौन हैं, आपने क्या किया है और आप कहाँ हो। आपकी बात सुनी गई, क्योंकि आपने हमेशा इस चीज को भरोसा रखा कि आप पहले उसको प्रूव करेंगे, आप उस चीज को पहले स्टडी करेंगे, आप उस चीज को पहले वहां तक आएंगे कि हाँ, ये पद्धति शुरू होगी। आपने वो चीज एक ब अक्षर से आपके अपने घर के, मतलब जो आपके सहायतक है, तो उनसे शुरू किया। वहां से आपके हर एक, मतलब जर्नी में, आप आपके हर एक प्रोसेस में, लाइफ में, कहीं से भी आप पिक कर रहे हैं कि सारी चीजें कैसे आके जुट के एक मतलब बड़ी सोच को आगे बढ़ाएगी। दूसरी चीज मैम, आप मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि आपने थर्ड पार्टी को बुलवाया बाहर से। तो ये कैसे हो पाया? आज के लोगों, मतलब युवा युवा को जानना चाहिए कि मैम ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया उस लेवल तक कि वो किसी को रिक्वेस्ट करके बुला पाए। और मैम जब बुलाएंगे तब बिना रोक टोक के, जैसे कि पापा ने भी बताया था कि आपकी कलम, आप मतलब यहाँ पे आपके बात आ गई कि अगर डॉक्टर सुनीता गांधी जी बता रहे हैं और बुला रहे हैं कुछ काम के लिए और जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो उसका क्या वैल्यू है। वो उन लोगों ने समझा और उन्होंने उनको डिनाई नहीं किया, और उनके लोग यहाँ पे आए, थर्ड पार्टी वेंडर्स आके प्रूव किया। और क्योंकि थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि मैम खुद उस चीज़ को कर रहे, तो मैम खुद वैलिडेट नहीं कर सकते। तो मैम ने अपने आप को इतने लेवल पे कैसे एनेबल किया, हमारे श्रोता को आज ये जानना चाहिए। हमारे दर्शक, ये आप लोग बने रहिए, और ये जो पूरी जर्नी है, इस ये हमारे सारे युवाओं को एक अलग एक्सपीरियंस देगी कि हमें कहाँ पे, अभी अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़े हो, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे, वो सारे आंसर्स मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा, मुझे तो मिल रहा है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं मैम, और मैं एकदम ध्यान लगा के सुन रहा हूँ। आई एम इन अ वेरी जेन मोड एट दिस मोमेंट कि मैम, मतलब लाइक आई एम रियली डिलाइटेड एंड रियली लाइक मुझे इतना अच्छा मौका मिलेगा। तो मुझे पता नहीं था कि आज ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी मैम। यस मैम, आगे जानना चाहेंगे। और मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो सोशल वर्क का जो लाइक जज्बा था, वो बचपन से घर से शुरू होके आज यहाँ तक पहुंची है। उसके साथ जैसे कि नई नई चीजें आती गई, जैसे कि ESG आई, जैसे कि लाइक सस्टेनेबिलिटी के बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है, और सारी कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी एंड ESG के बारे में बहुत बातें आगे लाते हैं। इन चीजों चीजों में आपकी कहाँ, मतलब आपके हिसाब से कैसे इस चीज को सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये एक प्रोसेस के अंदर आना चाहिए, ये कैसे हम लोग आगे ले जा पाए। और एट द सेम टाइम, जो आपने मतलब वी ऑल वांटेड टू अप्रिशिएट यू दैट आपने यूपी से शुरू करके आज आपके पास चार पांच प्रदेश हैं, जहाँ पे आप एजुकेशन को एक अलग सिस्टम के थ्रू, प्रूवन टेस्टेड सिस्टम के थ्रू आप ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एंड यही चाहिए हमारे समाज को। हमें वो नहीं चाहिए कि कहीं पे लिखा हुआ है कि ये नहीं चलेगा, किसी ने बोल दिया तो वो नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। हमें आगे बढ़ के सोचना चाहिए। और इसके लिए मैम, आपने कहीं जाके किसी की सिफारिश नहीं लगाई,
आपने प्रूव किया, आपने टेस्ट किया, प्रूव किया, आपने पूरा सब कुछ सामने रख दिया, तो कोई ना बोल ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बताया कि आपको ऐसे लोगों का सहयोग मिला जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को आपके जरिए देखा, विजुअलाइज किया, जो वो जो मतलब आगे क्या मतलब इससे फायदा हो सकता है, क्या क्या समाज में सुधार आ सकती है, वो उन्होंने देखा, आपके अंदर देखा, और आपको उन्होंने समर्थन दिया। एंड थैंक यू वेरी मच टू एवरी वन हु इज इन्वॉल्व इन योर जर्नी इन दिस केस। एंड मैम, यस, आगे जानना चाहेंगे मैम आपकी थॉट प्रोसेस को, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एआई, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईएसजी, सस्टेनेबिलिटी एंड एवरीथिंग। मैम आप इंक्लूड कीजिए, वेरी इनफॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई सीक्वेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। आप बताते जाइए, हम आपके सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं मैम। यस मैम, ओवर टू यू। नहीं, बेसिकली इशू ये था दिमाग में कि भी भारत को अगर साक्षर करना है, हम्म। और ये जो हमने एक्सपेरिमेंट तौर पे शुरू किया था 2014 में अडल्ट लिटरेसी के साथ, हम्म। और जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं और फिर स्कूल में लाए, तो दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर मी हाउ टू मेक भारत साक्षर। हम्म। अब भारत साक्षर होगा तो पूरी दुनिया साक्षर होगी, क्योंकि राइट। वो पद्धति सब जगह जानी चाहिए। राइट तो मैम। फिर मैंने मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, घाना में अभी पायलट्स हुए हैं 2 ओवर द हम्म। लास्ट 1.5 साल, हम्म। और अब घाना गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रहे हैं कि इसको कैसे वहां पे व्यापक करें। हम्म। इसी तरह पेरू में स्पेनिश भाषा में हुआ, हम्म। और इसको कई भाषाओं में परिवर्तित करते गए, अब 33 भाषाओं में है। जो भारतीय 15 भाषाएं हैं और बाकी अन्य विदेश की भाषाएं हैं। हम्म। अफ्रीका की कुछ भाषाएं हैं, हम्म। जैसे कि वर्ल्ड वाइड जो फेमस भाषाएं उनमें भी है, स्पेनिश में है, तो हम्म। पेरू में भी हुआ। हम्म। पोर्चुगीज में भी है, स्वाहिली में भी है, अरबिक में भी है, बहुत भाषाओं में है ये इसमें। तो ये था कि इसको व्यापक करने के लिए पूरा बेस बनाना पड़ेगा। दिस वाज बिल्डिंग द बेस, द फाउंडेशन। नाउ इट इज टाइम टू स्केल इन अ मच बिगर वे। हम्म। तो उसके लिए भी कोई रोड मैप होना चाहिए। तो मैंने एक फ्रेमवर्क बनाई है, RRI, रैपिड रिजल्ट्स इनिशिएटिव। हम्म। तो रैपिडली रिजल्ट्स आने वाला एक इनिशिएटिव, और उसमें हम जोड़ रहे हैं देशों को। अ, एक कॉन्फ्रेंस भी प्लान कर रहे हैं फरवरी में, गॉड विलिंग हो जाएगी। तो डेफिनेटली। तो उसमें लोगों को लाना भारत में, वो देखें हमारी जो पद्धति है कैसी है, मेड इन इंडिया, राइट, विदेश ले जाना। एकदम तो एकदम। आई एम वेरी कीन ऑन दैट। हाँ हाँ। एंड लोगों को लगता है कि भारत दूसरों देशों के आइडियाज को लाता है। इनफैक्ट है बहुत ज्यादा है एजुकेशन में आजकल कि हम हर तरह के विदेशी आइडियाज को लेके आते हैं, हम्म। लेकिन होम ग्रोन है उसको कभी कभी हम लोग इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दे पाते हैं। हम्म। और एक्चुअली क्या है कि रियलिटी में ये वर्क कर रहा है, और इसका बयान नंबरों में ही नहीं है, बच्चों की लाइव्स में है, हम्म। बच्चों के अरमानों में है, टीचर्स के अरमानों में है। टीचर्स बहुत अमेजिंग है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स मैंने नहीं सोचा था इतने मेहनती होंगे जो हमने सुना था, राइट। राइट। लेकिन एक्चुअली रियलिटी बहुत अलग है। टीचर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं, दिन करेक्ट। रात इतनी धूप में, इतनी मतलब बहुत ही खराब कंडीशंस में वो काम करती हैं, तब भी करेक्ट। चश्मा नहीं छोड़ती हैं, लगी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लगने के बावजूद उन्हें परिणाम नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता। रिजल्ट। तो क्योंकि पद्धति पुरानी है। करेक्ट मैम, तो यही यही बात है, यही बात है। तो एक डॉक्टर बड़ा माहिर है, लेकिन उसके पास मशीनरी नहीं है, एग्जैक्टली। राइट। राइट। तो वो कैसे करेगा, वो कैसे? एक्सरे नहीं कर पाएगा, वो ये नहीं कर पाएगा। तो हमने जाके उनको मशीनरी दे दी, एक हम्म। पतली सी किताब और एक पद्धति दे दी, और उससे वो और कारगर जो था ही ऑलरेडी, हम्म। वो अपने रिजल्ट को निकाल पाया। तो 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में कई टीचर्स रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। जब हम इसको बताते हैं तो हमें ऑपोजिशन बहुत मिलता है, हम्म। और ऑपोजिशन मेरे लिए एक स्ट्रेंथ बन जाती है। जितना ये लोग अपोज करते हैं उतना मैं कहती हूँ चलो दिखाते हैं। तो एक क्वाइट सा रेवोल्यूशन चल रहा है। राइट। और कई लोगों ने पब्लिकली भी इसको क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे डाला है कि कुछ एक एनजीओ है जो ये कहता है कि या एनजीओज हैं जो कहते हैं कि 30 से 45 दिन में बच्चे लिटरेट न्यूमरेट हो जाते हैं, ये सबको बेवकूफ बनाना है, और इस तरह की चीजें लिखी। तो राइट। उससे मेरा जोश और भी बढ़ा, और बढ़ा। राइट। राइट 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 राइट, यही यही तो यही यही होना चाहिए मैम। कि चलो अब ऑपोजिशन आ गया। आ गया। तो हम एक छोटे से एनजीओ है, वी आर नॉट इवन फंडेड, मतलब बेसिकली वी हैव बीन रनिंग दिस ऑल और ऑन आवर ओन। किसी तरह भगवान ने हमें अलाउ किया कि हम इसे कर पाए यहाँ तक। तो राइट। मैं अपनी किताबें बनाती हूँ जो कई स्कूलों में जाती हैं, प्राइवेट स्कूल्स में। तो उससे जो इनकम आती है मैं इसमें लगाती हूँ।
हम्म, प्लस हम्म, मेरी वर्ल्ड बैंक की पेंशन है, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज मैं इसमें लगाती हूँ। और बेसिकली बिकॉज मैं अपने अपने खर्चे से करती हूँ, तो मुझे बहुत ही एफिशिएंट होना पड़ता है। पड़ता है। अगर किसी और का पैसा होता शायद हम उसको इतनी अच्छी तरह नहीं यूज करते। हाँ, उसको भी सिर्फ लेजेंड बुक में ही रह जाता वो। राइट, एंड ऑल्सो बिकॉज वी फील कि पैसा कहाँ खर्चा करें, क्या करें। हाँ, हाँ, तो हाँ। हमें बहुत मतलब कैटेलिटिक रोल प्ले करना है, हम्म, और बहुत ही न्यूनतम कॉस्ट में। तो हमने एक इन्विजन किया था 10 रुपए की लिटरेसी, हम्म, मात्र 10 रुपए में लिटरेसी हो जाए। और आज की डेट में पर बच्चा कॉस्ट देखें तो इससे भी कम है। करेक्ट, राइट, करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी न्यूमरेसी सब मिला मिलू के जो कॉस्ट आ रहा है, एंड उससे जो फायदा मिल रहा है बच्चों को, वो बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि बुनियादी शिक्षा जब हो जाती है तो बच्चे एक नई ट्रेजेक्ट्री पे आ जाते हैं। जो पढ़ लेता है, लिख लेता है, वो अपनी किताब खुद पढ़ लेता है। करेक्ट। एक टीचर आपको बता रहा है, वो आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, प्लस सुन के कौन रिमेम्बर करता है, करके करते हैं। तो वो जब खुद पढ़ रहा है, और हमारे जोड़ों में हम पढ़वाते हैं बच्चों को, तो बच्चे बहुत मजे में पढ़ते हैं और अलर्ट रहते हैं। क्योंकि हमारे पास सामने कोई बैठा हुआ है, हम उसके साथ पढ़ रहे हैं, तो हम ज्यादा पढ़ेंगे। और करेक्ट, उस तरह से वो एक जॉयफुल लर्निंग बन गई है, और साथ में बहुत ही प्रोडक्टिव हो गई है। पूरे साल का कोर्स बहुत कम महीनों में खत्म हो जाता है। करेक्ट, तो करेक्ट। ये चीज लेके अब हम चाहते हैं कि आरआरआई के थ्रू हम सारे प्रदेशों में लेना है। 14 प्रदेशों में है इस समय, छोटे बड़े स्तर पर। 4 प्रदेशों पे उन्होंने हमें एमओयू किया है, पूरे प्रदेश का। तो नेक्स्ट स्टेप सस्टेनेबिलिटी की जो बात आप कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि जो इस चीज को डेटा देख करके, या अपने यहाँ अपने खुद के प्रांगण में, अपने नेबरहुड में करके दिखा लें। 45 दिन का प्रोग्राम है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, जबकि नॉर्मली एजुकेशन प्रोजेक्ट में 3 से 5 साल लगते हैं। तो हम राइट। कहते हैं नहीं, आपको 30 दिन में आप ट्राई कर लो, क्योंकि 30 में तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। 45 दिन में बच्चे पूरी तरह रिपोर्ट हो जाएंगे। पर एग्जैक्ट, 30 दिन आप ट्राई कर लो। वॉट, एग्जैक्ट। 1 मंथ, दैट्स ऑल। 1 मंथ एंड हाफ, बिकॉज वर्किंग डेज हैं। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने के बाद, दैट इज कॉल्ड स्टडी। उसके बाद फिर आप इसको स्केल करें। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, झारखंड में, तो रांची में उन लोगों ने हमको दिया मौका कि वहां पर हम एक पायलट करें, जो स्टडी फेज है, जिसमें हमने 4+4 स्कूल लिए। जैसे शामली में 10+10 लिए थे, यहाँ 4+4 रैंडमली गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए। गवर्नमेंट ने हमको दिया एमओयू। उसके बाद फिर हमने वहां पे इसी तरह से एक स्टडी करी, आरसीटी करा। और उसमें जब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, तो गवर्नमेंट ने हमें पूरा जिला दे दिया, 2100 स्कूल। देखिए। तो ये स्केल हो गया। हम्म, तो 4 से हमें 2100 मिल गए। पूरा रांची हमारे पास है, सुनो, एक ट्राइबल बेल्ट है, और बहुत सारे और भी हमारा अनुमान है कि वहां पे और भी ज्यादा करें हम लोग बाद में जाके। हम्म, तो अ, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सस्टेन। हम्म, तो जो आपने कहा ना, सस्टेनेबिलिटी, हम्म, तो दैट इज स्टेज 3 ऑफ आर आर आई। हम्म, सस्टेन, तो सस्टेन कैसे होगा? हम्म, क्योंकि अगर उनको लगता है कि ये कारगर है, और ये हमारे हर बच्चे को मिलनी चाहिए, तो दो तरीके से वो मूव कर सकते हैं। एक तो इसको हर साल सप्लीमेंट की तरह दें। तो जैसे कि हम खाना खाने के पहले एक सलाद खाते हैं, तो उसका काम करेंगे, बच्चे पढ़ने लिखने लायक हो जाएंगे 20, 25, 45 दिन में। और उसके बाद फिर वो पाठ्य पुस्तकें अपनी खुद पढ़ लेंगे। उसके पहले भी पाठ्य पुस्तक पढ़ाएं, हम ये नहीं कह रहे एक्सक्लूसिवली ये करें, लेकिन 2 पीरियड प्रतिदिन मॉर्निंग के 45 दिन के लिए दें हमें। और उसके बाद फिर पूरे दिन बच्चे अपना जो भी करना है कार्यक्रम का वो करें। और 45 दिन बाद बच्चे अपनी किताब को खुद पढ़ने लगेंगे। उसके बाद भी हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, हम गिव अप नहीं करते, पूरे साल जुड़े रहते हैं कि किताब भी राइट। वो बारी बारी से पढ़ें, जोड़ों में पढ़ें, और मस्ती से पढ़ें। और टीचर्स भी इस बात को विश्वास करने लगे कि हाँ, बच्चे राइट, हमारे जोड़ी में कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। राइट, 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 तो हम उसके साथ कार्य रहते हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी का एक तरीका है। और दूसरा राइट। सस्टेनेबिलिटी का तरीका है कि वो अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिकाओं में इसको हम्म, सम्मिलित कर ले। अ, राइट, मैम। वो इट इज एम्बेडिंग इट। तो उस पे भी शायद चर्चा चल रही है कुछ जगहों पे, और शायद का मुझे पता है चल रही है। तो हम्म, भगवान की कृपा से वो होगा। लेकिन हम लोग नए लोग हैं, अभी नए हैं इस फील्ड में। फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव नॉट हर्ड ऑफ अस सो मच। लखनऊ बेस्ड हैं, दिल्ली में नहीं है। हमारी फंडिंग कोई नहीं है खास। तो राइट, ऐसे सिनारियों में एक तरीका सस्टेनेबिलिटी का ये है कि गवर्नमेंट इसे ले ले, और जल्द से हम एस्टैब्लिश करके उस राह पे आ जाए। तो हमें नहीं, हमको हमको अपने को प्रमाणित करने के अलावा इस पद्धति को हमें उनको और देना कोई। है, और हाँ। वॉक अवे कर जाना है कि आप इसको करेक्ट, चलाइए, हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, नो हाउ दे देंगे। लेकिन हम रिडंडेंट बनना चाहते हैं, हमारी करेक्ट। जरूरत ना पड़े, हम ये चाहते और इसको कंटिन्यूअसली आप इसको इवॉल्व भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। वो मुझे पता है कि आप उस मतलब पूरा सिस्टम को जैसे कि आपने शुरू किया, जैसे आपने एक प्रोसेस पहले पेन डाउन किया, उसको पेन डाउन करने के बाद आप
हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ते गया होगा, कुछ ना कुछ वहाँ से लाइक आपने डिस्कार्ड किया होगा, जैसे भी हो। मतलब आप उस चीज़ को तो डेफिनेटली हर एक मौके में, जैसे आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक जगह जिले से दूसरे जिला, एक लाइक समुदाय से दूसरे समुदाय में जैसे जा रहे हैं, जैसे ट्राइबल बेल्ट में आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा, वहाँ के पॉइंटर्स को आप ऐसे ट्रीट किया होगा कि आपने कि यहाँ और दूसरी जगहों पे लाइक क्या डिफरेंसेस हैं, और वो कैसे आप एक मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड करें, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप कर ही रहे होंगे। इसी इससे क्या हो रहा है, ये सिस्टम इवॉल्विंग मोड पे डेफिनेटली आ गया होगा, और यही हमें चाहिए। क्योंकि एज आई यू मैंशनड कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि कहीं पे किसी ने कुछ लिख दिया है और वही चल रहा है यस और नो में, जो इवॉल्व होना ही नहीं चाहते हैं। तो उस चीज का एक आंसर है ये, मैं यही हिसाब से आपके प्रोसेस को देखूंगा कि आप चाहते हैं कि कैसे क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आपने एड्रेस किया। और ये डेफिनेटली मैम, वी आर ऑल विथ यू, एंड जिस तरह से भी हो हम आपके साथ डेफिनेटली जुड़े रहेंगे। ये जो पहला पड़ाव है, ये शुरुआत है, और हम आपको डेफिनेटली आगे और लाइक पॉडकास्ट में लेके जाएंगे, और लोगों के सामने रखेंगे कि मैम का नेक्स्ट लेवल क्या हुआ, व्हाट इज 2.0, डॉक्टर सुनीता गांधी 2.0 में मैम क्या कर रहे हैं, कहाँ से शुरू हुआ था। तो मैम यहाँ पे आपका मुझे दो तीन चीज़ें चाहिए था। जैसे कि आप अभी पूरा एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपने एआई का इन्वॉल्वमेंट में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। आपसे और जानना चाहेंगे कि आपका ये प्रोसेस में देवी संस्थान ऑलरेडी शुरू हो चुका था, कि आपके माइंड पे डेफिनेटली चल ही रहा होगा वो, और आप कहीं भी जा रहे होंगे आपको वहां पे आपने पिक कर लिया होगा कि हाँ, देवी संस्थान भी खुलना है। ऑब्वियसली नाम नहीं दिया होगा, नाम बाद में दिया होगा, लेकिन आपके दिमाग में वो आइडिया ऑलरेडी जनरेट हो चुका होगा, ये जो आपने जितना भी मतलब ये प्रोसेस शुरू किया। तो वो भी आप एक बार हमें बताइए कि देवी संस्थान कैसे आगे आया, और ईएसजी के बारे में आपका क्या मतलब योगदान, समाज को आप बताना चाहेंगे कि ईएसजी की ज़रूरत क्या है, लोग क्यों आजकल एनवायरमेंटल लाइक सेंसिटिव चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, और ये क्यों है, इट इज़ इम्पोर्टेंट इवन दो वी ऑल से दैट द प्लेनेट हील्स बाय इट्स ओन। प्लेनेट अपने आप को खुद रिन्यू कर लेता है, उसके बाद भी हम लोग ईएसजी के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्यों ज़रूरत है हमें प्रेजेंट को और एलिवेट करने के लिए ईएसजी को, क्यों हमें लोगों तक ले जाना है, समझाना है। और जो भी है आज हमें पेड़ पौधों से लेके साफ सफाई से लेके इलेक्ट्रॉनिक लाइक जो वेस्ट है उससे लेके सी लाइफ से लेके प्लेनेट के लाइक अलग अलग लाइक सेक्टर में क्या क्या चीज़ों में आप क्या देखते हो। आपने बहुत मतलब आपको ऐसे बताएंगे हम कि आपने इतनी दुनिया घूमी है, इतने लोगों से आपने मिला है, इतने सेक्टर्स में आप गए हैं, कहीं भी मतलब आपका मतलब ऐसा है कि आपकी एक्सपीरियंस और आपके जो आपने जो देखा और आपने जो समझा, और डेफिनेटली आप देखते हैं, समझते हैं, और आपका व्यू वहां से ही निकल पड़ता है। मुझे तो इतना तक आज समझ में आ गया कि आप वहां पे इमीडिएटली एक आइडिएट करना शुरू कर देते होंगे, इवन दो इट्स नॉट योर फील्ड, बट यू डेफिनेटली हैव दैट थिंग इन यू, एंड दैट इज व्हाट वी आल्सो शुड लाइक मतलब हमें भी इस चीज को अपने अंदर लाना जरूरी है। और इसी तरह से हम एक ऐसे योद्धा बन पाएंगे, जैसे पापा ने बताया था कि हर एक बंदे को डॉक्टर सुनीता गांधी बनना है, राइट। सो एक डॉक्टर सुनीता गांधी इज नॉट इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेनेट। हम प्लेनेट बोलेंगे, हम इंडिया नहीं बोलेंगे। इंडिया बोलेंगे तो बहुत छोटा दिखेगा, हम प्लेनेट बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, राइट मैम। यस मैम, ओवर टू यू। और बताइए आप आगे की जर्नी आप जैसे देवी संस्थान से लेके और बाकी सारे जो प्रोसेसेस आपने शुरू किया। यस मैम। तो नंदन जी, पहले तो देवी संस्थान हम्म। मैंने शुरू किया बहुत साल पहले।
मैं ओके। विदेश में ही थी, वर्ल्ड बैंक में ही थी, मुझे गिल्ट फीलिंग होती थी कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, और मैं अपने पे चेक से, वहां पे होता था कि यू कैन एलोकेट सम फंड्स फॉर चैरिटी, यू कैन चूज द चैरिटी यू वांट टू गिव टू। ओके। लेकिन सारी चैरिटीज अमेरिका वाली थी। ओह। तो मैं पैसे दे रही थी चैरिटी के, मैं कहा ये तो मुझे भारत भेजना चाहिए, मेरे भारत वासियों राइट। को। तो वहां पे दिमाग में मेरे आया कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन खोलूंगी जिसका कि मैंने नाम दिया, 92 में था ये, डिग्निटी एजुकेशन विजन इंटरनेशनल, राइट। राइट। जिसके कि एक्रोनिम्स जुड़ के बन गए देवी। ओके। तो ये दिमाग में था कि जब हम भारत आते थे तो मुझे लगता था शायद हम गरीब लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते, वी रॉब देम ऑफ देयर डिग्निटी, उनसे बुरी तरह से बात करके, उनको नीचा दिखा करके, हम अपने को ऊपर दिखा करके, वी रॉब देम ऑफ देयर डिग्निटी, एंड द मोमेंट वी रॉब देम ऑफ देयर डिग्निटी दे बिकम होपलेस। दे बिकम उनकी होप एग्जैक्टली। को हम कन्वर्ट कर देते हैं होपलेसनेस में। तो एन एजुकेशन इज द बिगेस्ट वे टू डेवलप होप एंड एस्पिरेशन। तो राइट। वहां पे जो वर्ड डिग्निटी था वो मुझे बहुत ज्यादा सही लगा हमारे एंडेवर्स के लिए। तो फिर हमने डिग्निटी एक ट्रिप पे भारत आए, मैंने इधर अखबार में दिया कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहती हूँ इस नाम से। तो लखनऊ के जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो 12 स्टेशन और हम लोग का सिटी मॉडल स्कूल का हेड ऑफिस है, वहां पे आ जाएं और हम उनसे चर्चा करेंगे इस पे, और एक बनाना चाहते हैं। तो उसमें एक बहुत अमेजिंग आदमी आ गया अमंग मैनी पीपल, and he was the head of research and development at railways in RDSO लखनऊ। तो अमिताभ चक्रवर्ती जी, तो वो आ गए। तो मैंने कहा सर मैं आप ही को सौंपूंगी, मैं तो जा रही हूँ वापस भारत छोड़ के। तो विदेश में काम कर रही थी मैं। तो उन्होंने फिर इसका चार्ज लिया और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लीड किया, फिर मैं पैसे यहाँ भेजती थी। ओके। राइट। तो वहां से पैसे इधर आते थे। एक और जना जुड़ा जो कि बहुत ही हिस्टोरिकली कनेक्टेड है डिग्निटी एजुकेशन से, दैट इज टोनी कासलमैन। तो टोनी कासलमैन उसमें स्टूडेंट था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, मैंने उसे वर्ल्ड बैंक पे लाके एक स्टैनफोर्ड इन गवर्नमेंट प्रोग्राम में इंटर्नशिप दी थी। वो इतना अमेजिंग यंग मैन था। और जब वो वापस उसने अपनी डिग्री खत्म करी तो मेरे को उसने लिखा कि मैम आई वांट टू गो टू योर देवी प्रोग्राम इन इंडिया एंड वर्क देयर। तो मैंने उसको हर तरह से डिसवेड करने की कोशिश करी कि भैया वहाँ बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, यू नो झोपड़ियों में रहना या छोटे छोटे घरों में रहना वगैरह वगैरह। उसने कहा नहीं मैं करना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक में मैंने उसको हायर कर लिया था, और वो सैलरी छोड़ छाड़ के वो यहाँ आके रहा, और 7 साल उसने कंट्रीब्यूट किए इस देवी संस्थान को बड़ा करने में। देखिए मैम, मैं मतलब यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा बीच में कि पापा का जो विजन था, डॉक्टर सुनीता गांधी टू, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे दिख रहा है कि वो उन्होंने आपसे ये ऑप्ट किया होगा, उन्होंने आपके जो विचारधारा है, आपकी जो चीजें हैं, वो उनमें भी मुझे दिख रहा है। उन्होंने भी मतलब उसी तरह से सोचा कि वर्ल्ड बैंक का उतना बड़ा एक लाइक अपॉर्चुनिटी जो आज सब बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक में कोई अगर नौकरी करता है, कोई अगर वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक को सर्व कर रहा है, तो नथिंग कैन बी बिगर देन दैट, राइट। सो उसके बाद उन्होंने ये जो सेक्रीफाइस करने की सोची, ये जो उन्होंने सोचा कि ये करना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया, आपने प्रोड्यूस कर दिया मैम। तो इस तरह से नींव सेट हुई 1992 में, मई 1992 में शुरू हुई कहानी। राइट। और उसके बाद मैं आती रहती थी, जाती रहती थी, गाँवों में जाती थी। मेरी बिटिया छोटी थी, इसको गोदी में लेके जाती थी मैं गाँवों में। और बहुत ही मतलब अमेजिंग रहा। राइट। और मुझे बहुत अच्छा लगता था गाँव में जाके लोगों से मिलना। और काफी काम किए देवी संस्थान ने। देवी संस्थान गॉट नोन एज एन ऑनेस्ट एनजीओ डूइंग रियल वर्क, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ टोनी। टोनी सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। उसने हिंदी भी सीख ली, उसने हमारी एक प्रोजेक्ट मैनेजर से उनसे शादी भी कर ली। और फिर 7 साल बाद उनके फादर ने कहा भैया तुम तो महात्मा बन गए हो, वापस आओ अमेरिका। फिर उसने जाके मास्टर्स अपना किया जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से, और फिर उसने वहां पे काम भी किया। अभी भी अमेरिका में है, वो काम कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सब सैक्रिफाइस करके लग जाएं। और उससे भी मैंने बहुत सीखा। उसको भी मैंने ये PRA सिखाया था, पार्टिसिपेटरी रूल अप्रेजल। तो वो साइड में बैठता था, वो जमीन पे बैठता था, वो गांव वालों को कुर्सियों पे बिठाता था। राइट। तो इस तरह के मतलब विचारों से वो देवी संस्थान बना, और इस तरह के लोग मिले। फिर वो थोड़ा सा, जब वो टोनी वापस चला गया तो कमी आई बहुत सारी देवी में। जो भी लोग हायर किए गए वो वर्कआउट नहीं हुए। एंड फिर मिनी गोयल जो कि एक पद्मश्री हैं, वो उसके
संस्थापक बने क्योंकि अमिताभ जी बुजुर्ग हो गए थे और अ, नहीं रह पाए वो इस दुनिया में। तो फिर गोयल जी ने बहुत सारा काम किया, फिर वो भी गुजर गए, मतलब काफी साल पहले की बात है ये। फिर मैं खुद ही वापस आई, तो फिर मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया ऑफ देवी संस्थान, और फिर मैंने रिसर्च से काम शुरू किया यहाँ पर। तो ये 2013-14 की बात है। और उसके बाद से ये जो आपको कहानी बताई है, आज की डेट में बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है, और ये भी बहुत कम है अगर हम डेफिसिट अकाउंटिंग करें। यस नॉट यस। कि हमने इतना अकम्प्लिश कर लिया, बिकॉज हमने इतना अकम्प्लिश कर लिया, उस पे कई लोगों ने 10 गुना और कर लिया है, लेट्स से। करेक्ट मैम। तो हम खुश नहीं हैं अपने से इन दैट सेंस, राइट। हम्म और ये भी नहीं कि दूसरों ने किया, हमें तो ये कि लक्ष्य हमारा जो, उससे हम कितनी दूर हैं। हम्म। तो वो डेफिसिट अकाउंटिंग हो गई। भी हमारा लक्ष्य पूरे भारत को साक्षर करना है, तो हमने नाम मात्र किया है। और उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो RRR प्लस और स्ट्रैटेजीज कि हम इसको कर पाए, क्रिटिकल मास पे कर पाए, लोगों को कन्विंस करा पाए, लोगों को ला के यहाँ दिखाएं कि क्या हो रहा है। वो परिवर्तन केवल माइंडसेट का है, परिवर्तन केवल विचारों का है, परिवर्तन केवल बिलीफ का है। तो जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठा हुआ है डिसीजन मेकिंग पावर में, उसको हम कैसे कन्विंस करें कि भाई ये कारगर है, आप इसे ट्राई करो, कम से कम केवल 30 दिन ट्राई कर लो। उसके लिए भी कई लोग राजी नहीं होते, बड़ा मुश्किल करते हैं। करीब 10-10 महीने, 12-12 महीने लग जाते हैं एक 4 स्कूल के MOU के लिए। करेक्ट तो करेक्ट। लेकिन ये है कि हम छोड़ नहीं रहे उस चीज को, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो। और एक क्रिटिकल मैच जब बन जाएगा, तो होपफुली ये बात अपने आप फैलेगी और ये होगा। करेक्ट। आ, और हम लोग सब लोग मिलजुल के काम करें, ये भी मेरी मेरी एक बहुत बड़ी तमन्ना है। वहां पे राइट हम फेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हम उसको क्रिटिसिज्म ना लेके उसको माने कि भाई कभी ना कभी तो वो समझेंगे इस चीज को। राइट तो राइट। हमें न्योता देते हैं उनको कि आप आइए हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिए वो कह रहा है, क्या है ये पद्धति। करेक्ट तो जैसे कि एक छोटे डब्बे से गणित थोड़ी सीख लेंगे, भैया आप देखिए वो छोटे डब्बे से कैसे सीख रहे हैं गणित। तो जब तक करेक्ट। आप अपने अपने दफ्तर में बैठे हैं और आपके खुद के विचारों से नहीं मैच कर रहा हमारा विचार, तो उस पे जजमेंट ना लीजिए, जाके देखिए, जाके समझिए। क्योंकि शिक्षा में हमें नए परिवर्तन लाने हैं, 10 साल बाद भी ऐसी शिक्षा नहीं होगी। नहीं होंगे। तो वो क्या होगी, अगर कोई झलक उसमें दिखा रहा है तो आप जाके देख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। 10 मिनट लगेंगे आपके उस स्कूल में आने जाने का, मिला मिलू के 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे, राइट राइट। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, और टीचर और प्रिंसिपल खुद बताएंगे, और बच्चे खुद कहानी अपनी बताएंगे। राइट। तो मैं ये इनवाइट करना चाहती हूँ कि लोग विश्वास करें। हम्म और विश्वास से बहुत चीजें होती हैं, जैसे अनीता जी ने विश्वास किया, हम्म विजय किरण आनंद जी ने विश्वास किया, बहुत लोगों ने विश्वास किया, जिसकी वजह से हम इतना बड़ा प्रोग्राम अभी तक ले पाए हैं। हम्म। और ये विश्वास बढ़ेगा तो हम लोग कामयाब होंगे। और जहां तक ये एक्सेलरेशन की बात है इसकी, तो AI विल प्ले अ वेरी बिग रोल। हम्म। वी कांट से, जब कैलकुलेटर आया तो मैथ्स टीचर्स ने बहुत अपोज किया कि हाँ। ये कैलकुलेटर हमारे को डिपेंडेंट बना देगा मशीनरी पे। राइट। बच्चे जो गुणा कैसे सीखेंगे, सब उस पे जाके कर लेंगे। तो इसी तरह AI से डर तो लगता है, हमको भी लगता है, लेकिन एक्चुअली AI इज अ टूल, राइट। अब राइट। उस टूल को हम कैसे यूज करें वो हमारे ऊपर है। एग्जैक्टली और मैम। उससे अच्छे कामों में लगा सकते हैं तो बड़ा अच्छा है, तो इसमें बहुत अच्छे काम है। तो हमारी जो पद्धति है उसको हम AI पे ले आए हैं। हम्म। और सून ही उसका पायलट्स ट्रायल्स चल रहे हैं, उसको हम हर गरीब के हाथ में देंगे, नाइस नाइस मैम। फ्री में। नाइस तो मैम। वो उठा के उसको अपने मोबाइल पे ले, क्योंकि आजकल लो कैपेसिटी मोबाइल्स तो हर एक के पास है, और व्हाट्सएप सब के पास है। तो कहीं ना कहीं वहां पे क्रांति शुरू करें, जहाँ एटलीस्ट मोबाइल है, हम्म। और सबके हाथों में दें। और बहुत ही रुचिकर, बहुत ही फन तरीके से उनको पढ़ाएं, सारी एनालिटिक्स पीछे कलेक्ट हो। हमें पता है कि लोग आ रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उससे हम उसको और सुधारें, फाइन ट्यून करते जाएं। यूर राइट कि हमने अल्फा पद्धति को भी, जब हमने इसको 2014 में इसको शुरू किया था, उसका एक मतलब अ, कई एवोल्यूशंस हुए। इवोल्यूशन। और स्पीकर स्मार्टर, पेयर लर्निंग उसमें जोड़ा, राइट। गणित का हमने डेवलपमेंट किया, बहुत सारी चीजें करी, और उसमें भी हम फाइन ट्यून करते रहते हैं। जब भी करेक्ट देखते हैं हम सोचते हैं कि नया वर्जन। आई थिंक मेरे हिंदी के 14 वर्जन बन चुके हैं, यू नो। करेक्ट। ओके देखिए। तो वो फाइन ट्यूनिंग होती है, मैं जब बैठती हूँ सोचती हूँ उसके बारे में, फिर मुझे आइडिया आता है नहीं, इसको थोड़ा सा ये करते हैं। तो पापा बताते थे काइजन फिलोसफी, जापान की, जो उन्होंने स्टडी करी थी करेक्ट। जापान जाके। तो वो हमें बताते थे कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस यस यस यस। हर समय आप देखो, इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, और कैसे अच्छा कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं एक बार बना लिया फिर आप क्यों बदल रहे हो। करेक्ट करेक्ट मैम करेक्ट। तो बदलाव तो लाइफ है। बदलाव ही आगे बढ़ने का तरीका है। मैं तो ऐसे ही और मानता आगे हूँ। बढ़े, हाँ। राइट। और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए लोगों पे।
लोग एक चीज को नया है, लेकिन उससे क्या होगा, जैसे आपने अभी बताया। आप जैसे कि आप एकदम जड़ से जुड़े हुए हो आज। इवन दो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, हमने सबने देखा यहाँ पे। लेकिन आप अभी भी बता रहे हो कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है एआई को लेके, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ऑलरेडी कर लिया है काम। ऑलरेडी आप बीटा वर्जन टेस्टिंग में आप चले गए हो। एआई टूल आपकी रेडी है टू डिलीवर। तो दैट इज अगेन अनदर लेवल ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस एंड एक्सेप्टेंस जो है। जो हमारे रिजेक्शंस जो आती है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार स्क्रीन टाइम से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी एआई टूल आएगा तो लोग ऐसे करेंगे। लेकिन वही है, आपने जाना समझा कि एआई को एक टूल के हिसाब से हमारे काम में, एआई को हमें अपना स्लेव नहीं बनाना है, हमारे तरीके से काम करने को सिखाना है। उनको बताना है कि कैसे काम करना है, और हमारे लिए जो सही है वो करवाना है। तो एफिशिएंसी आएगी। और डेफिनेटली आपने जैसे कि बोला कि एआई एनेबल होगा, तो हमारे पास बहुत सारे डेटा आएंगे जिससे अब आप इम्प्रूवमेंट के रास्ते खुलेंगे। आपका जो प्रोसेस है उसके इम्प्रूवमेंट के रास्ते खुलेंगे। और विच इज अगेन वी ऑल यूज टू से that like continuous change, continuous acceptance, continuous like development is a part of the process। और वो जहाँ पे है वहीं पे सक्सेस है। और ये मैम की कंप्लीट जर्नी हमें यही दिखाती है कि कैसे मैम ने ये अलग अलग तरीके में अलग अलग डोमेन पे जाके काम किया, अपने एक्सपीरियंसेस को बांटा। ऐसे नहीं कि संजोए रखा। उनको जहाँ पे हुआ वहाँ पे उन्होंने इम्पार्ट किया। जहाँ से कुछ सीखनी हो, जैसे मैम ने राइटली बोला, ये भी चीज़ आपको जाननी चाहिए कि टॉनी करके जो युवक थे, नहीं, उनसे दासुन। उनसे मैम ने ये नहीं बताया कि उनको सिर्फ लेके आए, लेकिन उनको मैम ने ये मौका दिया और उनसे सीखा भी। और मैम जब बता रहे थे कि टॉनी नीचे बैठ के कुर्सी में लोगों को बैठाता था, तो मैम के ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पे। तो हमें भी ऑब्जर्वेंट रहना है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और हमें देखना है कि लाइफ में क्या ज़रूरत है। जैसे कि एक स्टूडेंट है मैम के, टॉनी। तो उनके उनसे भी मैम ने सीखा। तो हमें सीख सीख ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ टीचर से सीख सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट से सीख सकते हैं। जहाँ पे जज्बा हो वहां से सीख सकते हैं हम। राह चलते लोगों को देखते हुए सीख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। तो ये हमारा आज का मतलब पॉडकास्ट का सबसे बड़ी लाइक बात है। और मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट। और डेफिनेटली 2.0 मैं अभी ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ। आपसे डेफिनेटली इन पर्सन मिलने का बहुत एक लाइक मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मैम। we'll definitely discuss more about the changes and all other things that you are planning। मैम, आप आपके जो ये जो पॉडकास्ट है, आप बताइए कैसा लगा आपको, क्या आपका क्या कमेंट है, आप क्या चाहते हो, आप हमारे पॉडकास्ट में और क्या क्या देखना चाहते हो, ये हमें थोड़ा सजेस्ट करिए, गाइड कीजिए। so that we can also bring in more like positive things। As you also mentioned, always you mentioned that positive things are the best things to incur and nurture। So ma'am, yes, give us your thoughts, uh, and then we will definitely conclude this podcast for today। We are already running out of time, but मैंने टाइम देखा ही नहीं। पूरे पॉडकास्ट में मैंने आज टाइम देखा ही नहीं। और मुझे नहीं लगा कि ये टाइम कंस्ट्रेंट रहना चाहिए। और कभी टाइम कंस्ट्रेंट होने से क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें कवर करोगे, मैं जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें पूछूंगा। जैसे आपने भी बोला कि सारा कुछ नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है, और आपका ये एक्सपीरियंस ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देन दैट ऑफ द टाइम। ओके, हम इसको अलग अलग लाइक पार्ट्स में हम लोग इसको लाइव कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सारी चीज़ें एक बैठक में अगर कवर हो रही है, और आपने खुल के बोल के आप जब रुक गए हो, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये दिस इज द टाइम कि मैम को एक बार के लिए पूछे कि आप हमसे क्या चाहते हो एज एगहेड फाउंडेशन। आप बताइए कि आप हमें क्या रोल पे देखना चाहते हो फॉर द सोसाइटी। यस मैम। नंदन जी, आप बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं।
क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपने सोशल फील्ड चूज करी राइट मैम। और हम जैसे सोशल वर्कर को आपने अपने पॉडकास्ट में लाया। तो मैं चाहती हूँ कि आप करते रहो, लगे रहिए। और आपके लिए अ, शेयर है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जीत, ओहो, nice, ma'am. Nice, nice. So with that particular note, we will conclude today's थैंक यू podcast. सो मच। And जी। thank you very much, ma'am. It's a privilege for Agate Foundation to have you here in our podcast. And we would definitely plan for more and more discussions with you, ma'am, going forward. हम आपको लेके आएंगे और हम समाज में ये सारी चेंजेस के लिए आपकी जो आइडियाज है उसको हमारे सारे देश भर में और पूरे लाइक संसार में हम लेके जाएंगे। एगेट फाउंडेशन, फ्रॉम एगेट फाउंडेशन साइड हम आप लोग बने रहिए। हम अगेन आफ्टर Dr. Sunita Gandhi's podcast, we will be bringing up more and more, people who can, like resonate with the thought process that we have. And मैम ने already bar set कर दिया है, तो stay tuned. Who is going to be next? And we will be definitely waiting for that particular thing also. And thank you very much from Agate Foundation side. Thank you, ma'am. Thank you very much. Amazing time and looking forward, ma'am. Thank you. थैंक यू।